Assalamu alaikum, all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teacher Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy. Thank you so very much for joining us tonight. And tonight is the 16th July 2025, and the time is 9 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. And I request all the participants, please turn on your cameras so that we can proceed for the meditation and then we'll start our class. Okay, thank you so very much everyone for joining. Please sit straight and let's practice the meditation video. And please try to follow the meditation video. You will get the actual benefits of the meditation. Okay, thank you so very much. Ji Nasimullah bhai, please play the meditation. Sitting up straight, letting your palms rest in your lap facing open, and softly closing your eyes. On your next in-breath, breathe in extra deeply, stomach and ribcage fully expanding, holding your breath at the top. And when you're ready, exhale with a sigh. Really let go on that out-breath, and then return to a pattern of breathing that feels good to you. Letting the air flow naturally in and out. Letting your belly be loose and soft as it naturally expands on every inhale and contracts, even if ever so slightly, on every exhale. You are where you're meant to be. This is the perfect moment for you. The perfect morning for you. Indeed, today is a miraculous day. Tune in to where there's an eagerness for the day within your heart. Let all of your attention rest on this area. As you affirm, I am ready, willing, and able to have the perfect day today. There is a deep love within and around you. You access it now. You feel this inherent love and acceptance for yourself and who you are. You know that all is well. You are where you're meant to be. And by staying connected to this beautiful feeling you're creating within yourself right now, you allow today to unfold perfectly, so that today is another perfect day. Breathe in a bit more deeply to this feeling. Today is a perfect day. Connect to your breath and this feeling in your body. Relax into it. All is well.
You are where you're meant to be. On your next in-breath, take a nice, big, deep inhale, stomach and ribcage fully expanding, holding your breath when you reach the top. And as it feels good to you, exhale with a sigh as you begin to roll your shoulders, wiggle your fingers and toes, and as it feels good to you, very slowly, open your eyes back to the remarkable world around you. Enjoy the rest of your beautiful day, dear love. Thank you so much for being here. Thank you so very much, wonderful participants, for practicing this meditation video. Let's start our class. I request all the participants, please share your challenge, your problem regarding yesterday's task. कल हमने 2 न्यू टास्क किए, एक कॉलोनी और एक चैट जीपीटी के बारे में. कोई चैलेंज रहा, कोई प्रॉब्लम रही तो प्लीज उसके बारे में शेयर कीजिएगा, so that we can communicate about it, ताकि हम इस पे बात कर सकें, and then we'll proceed next. And those participants who were absent yesterday, please make sure you have to complete your task on day-to-day basis. ये ना हो कि हम एंड पे जब सर्टिफिकेट्स अवार्ड करने की तरफ जाए तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे पीछे रह जाए. So I'm hoping and I'm actually expecting the best from all of you, ताकि आप सब जो है सेम पेज पर रहते हुए हम एक साथ जो है अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट करें. मूसा भाई को तो वैसे भी ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो चाहेंगे कि सब एक साथ ग्रेजुएट करें. ओके वसीरम, जस्ट रेज योर हैंड एंड देन वी कैन गो फॉर इट. जी मिस लुबना, आपका सवाल है. अस्सलाम वालेकुम मैम. सवाल नहीं है, बस कुछ शेयर कर रहा था. जी कल जैसे मैं मोबाइल से क्लास मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ इश्यूज की वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी. टेड टॉक मैंने देखी, लेकिन उसका रिव्यू मैं पोस्ट नहीं कर पाई. टॉक एनी, कॉल एनी और चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन आज के कल वाले टॉपिक पे नहीं हुई, परसों हुई थी. जो उसमें चैलेंज मैंने फेस किया था ना, जब मैं स्ट्रीम यार्ड पे मैंने सेटिंग की और टैग लाइन बनाई, तो मैं टैग लाइन को बेसिकली ना वहाँ पे कुछ इशू आ गया था स्पेलिंग का, तो मैंने एडिट करना था, वो मुझे नहीं मिल रहा था. हालांकि छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी. कोई मुझे बात वहाँ नहीं, थोड़ा सा वो इसमें गाइड एक चीज, करते हैं. कोई बात जी. नहीं, आपने सिर्फ ये आके बताना है कि कम नहीं हुआ, दैट्स इट. अब हाँ, वो वो छोटा टैग हो लाइन, या बड़ा हो वो जाएगा, ठीक है, जी लेकिन टैग बताना लाइन एडिट जरूरी है. करना बता दे मैम, कि अगर हमने टैग लाइन मैं जैसे अभी बना दी है ना, तो उसको कैसे एडिट जोर करते से हैं, एक बात. और दूसरी बात ये कि मैम इंस्टाग्राम तो मेरा हो गया था सेट, वो जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम मेरा. लिंक्डइन पे मैंने अपने आईडी आईडी कार्ड की वो भेज दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे 5 डेज का टाइम दिया है वेट करने के लिए. तो मैं कोई लिंक्डइन बात पे नहीं, कोई भी चीज प्रोसीड नहीं कर पा रही हूँ. इस वजह से वो मेरी शीट भी लिंक्डइन वाली एम्प्टी है, बाकी मैं टारगेट्स जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ. मोस्टली मेरे जो फोकस है वो जबरदस्त. इंटरव्यू देने के ऊपर है अभी फिलहाल इस वीक में. नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर दूंगी, उसकी भी प्रॉपर एक लिस्ट बनाने के बाद. क्योंकि मॉर्निंग में मेरा जबरदस्त, स्कूल जो है वो ऑन हो गया है, तो मैं इवनिंग में ही अपने सारे टास्क कंप्लीट करती हूँ. सही, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि प्लीज, जो हम प्रोफाइल पहले बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, अब एकदम से आपने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो सडनली आपको ये चैलेंज भी आ सकता है कि आपका प्रोफाइल डिसेबल हो जाए. तो प्लीज उसको थोड़ा सा रोकने के लिए आप कोशिश ये कीजिए कि डे टू डे टास्क जितने आपके हैं सिर्फ उतने ही अपलोड कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं कीजिएगा. अदरवाइज फिर फेसबुक एकदम से आपके एल्गोरिथम्स के साथ मैच नहीं करता, तो वो भी परेशान हो जाता है कि अब एकदम से इतना सारा डाटा कहाँ से आ रहा है. ठीक है, तो प्रॉबेबली मतलब उसका भी आप ऐसे रखिए कि टाइम स्पैन बना लें. रात में लेट नाइट अगर काम करना है क्लास के बाद, तो आप 2 से 3 टास्क पोस्ट कर लें. सुबह अर्ली मॉर्निंग में टास्क कंप्लीट करने अपने, लेट्स सपोज जैसे कैनवा या स्टूडियो पोस्ट का कोई डिजाइन है, वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो है उसको अपलोड कर लें, आप कंप्लीट कर लें, लेकिन उसको अपलोड बाद में कर लें. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, अपनी थोड़ी सी सेटिंग इस तरह अलाइन कर लीजिए ताकि आपका फेसबुक, आपके बाकी अकाउंट डिसेबल ना हो. ठीक है, और क्योंकि इससे ये होगा कि फिर फेसबुक के एल्गोरिदम्स में कोई भी प्रॉब्लम या कोई चैलेंज नहीं आएगा, तो आप आराम से उसको कैटर कर सकते हैं. ठीक है, राहुल भाई और आदम भाई, आपके लिए मैं बैकग्राउंड सेंड कर रही हूँ, प्लीज इसको इनेबल कीजिएगा, अपने लिए डाउनलोड कीजिएगा और फिर इसको इनेबल कर. ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस लुबना, मैं जरूर इसको शेयर कर देती हूँ. जी वैसे सिर्फ आपका चैलेंज, आपका कोई सवाल.
जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible to everyone? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बैकग्राउंड ना लगाया करें, क्योंकि आप बिल्कुल छुप जाती हैं बैकग्राउंड में, मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं सीरम कहाँ है। फिर मिस आप प्रीटी ओके, जानते हमें जैसे हैं नसीबा भाई है ना, उनका लैपटॉप भी सपोर्ट नहीं करता, तो हमने उनको अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप इसके बगैर भी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप भी बगैर ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ना लगाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं भी इसको रिमूव कर थैंक यू सो दूंगी। वेरी मच फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। आपका बहुत शुक्रिया कि आप होल हार्टेडली इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा जो है वो फुलफिल कर रहे थे, लेकिन आप हमें नजर नहीं आते। अच्छा, जी अपना मैंने सवाल दोहराइएगा। आपसे ये क्या पूछना था कि एक तो ये कि वो जो आपने कहा था ना कि मैं आपको वो दूंगी, कोई वो सॉफ्टवेयर होगा जिसके जरिए आप जो है ना जो फेसबुक पे वीडियोस वगैरह अपलोड की है ना, तो वो 2-3 मिनट में आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर देंगे। तो मेरे साथ पता जी जी। पता क्या बात आ रही है, मैं ना फेसबुक पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन जो मेरे और प्लेटफॉर्म है ना, जैसे इंस्टा हो गया और यूट्यूब हो गया और लिंक्डइन हो गया, ये ना बहुत अधूरे हैं। और मेरा जो लिंक्डइन का अकाउंट है ना वो वेरीफाई है, और अच्छा अकाउंट है मेरा, काफ़ी सारे उसमें फॉलोअर्स और सब कुछ है उसमें। लेकिन ना जब मैं उसको वो अपने आईडी कार्ड पे वेरीफाई करती हूँ ना, तो वो आईडी कार्ड में उसको दिखाती हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि आपका आपका ये पासपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हालांकि मेरा चिप वाला आईडी कार्ड है। तो वो फिर उसको ना वेरीफाई नहीं करता। वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, 600-800 लोग मेरे दोनों तरफ हैं, फॉलोअर्स और फॉलोइंग वगैरह ऐसे ठीक है सब कुछ, फ्रेंड्स वगैरह। लेकिन वो जो जैसे हम कहते हैं कि भाई ऑथेंटिकली वेरीफाई करना, वो मेरा आज भी मैं कोशिश करती हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाया है और आईडी कार्ड इंग्लिश वाला वो भी लगाया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो कहते हैं पता नहीं मेरा सिस्टम क्या है, ये वो उसको फिर वो रिजेक्ट कर देता है। मेरा गॉट इंस्टाग्राम, इट गॉट इट। लिंक्डइन और जो मेरा यूट्यूब है ना, उस पे डाटा नहीं काम हो रहा मेरे से। सही हो गया। अच्छा, जो आपने अभी बात की ना कि मैंने एक सॉफ्टवेयर का आपसे कम्युनिकेट किया था, वो कल एक वेबसाइट थी और उसका मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया था एक दिन पहले, और मैंने उसके बारे में गाइड भी कर दिया था, उसका लिंक भी शेयर कर दिया था। आई गेस कल की क्लास ही थी या फिर एक दिन पहले की क्लास थी, लेकिन मैंने उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया था, ठीक है। jinbaba.net की वो वेबसाइट है, हमारी अपनी ही डिजाइन की हुई वो वेबसाइट है। हमारे रेहान स्कूल के बहुत ही अच्छे शानदार बच्चे ने वो वेबसाइट डिजाइन की, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर रेहान वाला। और इसके साथ ये होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि आप जितने अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट करते हैं, जो कि जैसे ये कि आप अब आप माशाल्लाह से कॉल नहीं शुरू कर दिया, आपने चैट जीपीटी कर दिया, और इसी तरह से आप अपने रिव्यूज जो है वो डे टू डे पोस्ट कर रहे हैं, तो इनको आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप आपस में अकाउंट्स को लिंक कर दें, और एक से दो चैनल पे आप जब पोस्ट कर दें तो आप दूसरे चैनल पे ऑटोमेटिकली इसको पोस्ट कर सकते हैं। और उसका वे आउट ये था कि अगर आप लैपटॉप से पोस्ट कर रहे हैं तो अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट करें, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली फेसबुक से कनेक्ट कर दे, तो फेसबुक से कनेक्ट कर देगा, उसका एक टॉगल है वो ऑन रखिएगा, और वो फेसबुक से कनेक्ट कर देगा। फेसबुक के लिंक को कॉपी पेस्ट करें और jinbaba.net पे डालें, और वो यूट्यूब पे पोस्ट कर देगा। और अगर आप थोड़े से पैसे लगा के पॉकेट मनी में से उसका प्रीमियम वर्जन खरीद लेते हैं, और ये पीकेआर में डॉलर्स में नहीं है इसकी पेमेंट, क्योंकि अब यहाँ के पाकिस्तान के ही बच्चे ने इसको बनाया है, तो उसने पीकेआर में इसकी अमाउंट रखी हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट एक्चुअली, क्योंकि मुझे उसका ये नहीं पता, बट ये मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया कि मिस उसकी जो है वो पीकेआर में अमाउंट है। अगर आप उसको पे कर देते हैं देन यू गेट द प्रीमियम वर्जन, आपको प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, और प्रीमियम वर्जन के अंदर रहते हुए आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने लिंक्डइन के थ्रू भी, कि आप ही फेसबुक का लिंक जो आपने इंस्टा से फेसबुक पे अपलोड किया था, उसको दो पाथ दे देंगे, एक यूट्यूब का और एक लिंक्डइन का, तो वो दोनों पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको मेहनत सिर्फ एक ही बार करनी पड़ेगी, और फिर बस आपने उसमें वेबसाइट में अपडेट कर दिया, वेबसाइट का काम है कि वो उसको पोस्ट कर दिया आपके डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट्स इट। चलिए ठीक है, मैं ये आज ठीक है ट्राई मिस। करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक, थैंक यू। ओके जी, ठीक है जी। ईशान, आपका क्या सवाल है? मैम, आज आपने मैसेज किया था कि व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगाओ। हम्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तक मेरा आईडी कार्ड नहीं आया, इस वजह से मेरी अपनी अभी तक सिम एक्टिवेट नहीं हुई मेरी। सही हो गया, सही हो गया। तो जब वो आ जाएगी मैं सिम ले लूंगी, उसके बाद मैं फिर अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगा लूंगी। तो मेरी बहन कितनी देर लगेगी आईडी कार्ड आने में? पता नहीं। तो आई फिर थिंक इसका मतलब है कि तब तक मेरा ये बूट कैंप खत्म हो जाएगा और आपके तो सिम आएगी नहीं। नो नो नो,
आई थिंक सो मैम, लेकिन 10 to 15 डेज अभी भी लगेंगे। आपने उसको अब प्रोसेस कर दिया है, प्रोसीड कर दिया है, उसका यस, सारा वो तो प्रोसीजर मैंने कर कंप्लीट है? दिया। यस, वो सारा कर अच्छा लिया। आज वेंसडे है। आई आस्क यू आफ्टर 2 वेंसडे, जो सेकंड वेंसडे होगा वो मैं दोबारा फिर ये याद दिलाऊंगी आपको कि आपने वेंसडे को कमिट किया था। ठीक है, चलो, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू जान। जी मिस्टर वेरिया, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम। ये अभी आप जिस वालेकुम सलाम। प्लेटफॉर्म को बता रही थी जिन बाबा का, उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आज दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है, और वो दोबारा से मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। जी जावेद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ जी कि जी जावेद भाई, करेंगे इस आपकी आवाज तो ड्रॉप हो रही है जावेद भाई, कैमरा कंप्लीट ऑफ नहीं हो करके पाया बात कीजिए। हेलो, जी जी जावेद भाई। आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ जी, हम बोल रहे थे कि हमारा जो बेसिक कंप्लीट करने के लिए आप बोले थे एक मैंने बच्चे को ऐड करने के लिए, तो वो नहीं हो पाया अभी तक वो स्टूडेंट बच्चे को। की बजाय अब मैंने बड़े को ऐड कर दिया है और उनको आपके बारे में गाइड भी कर दिया। वो बड़े कल आपसे कांटेक्ट करके आपका काम पूरा करा देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप एक काम कीजिएगा, जूम चैट के अंदर अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, वो बड़ा फिर आपसे वहां से नोट डाउन करके आपसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आप आपने कांटेक्ट भेजा है मेरे को व्हाट्सएप में? नहीं, मैंने आपको नहीं भेजा, मैं आपसे कह रही हूँ हम अपना नंबर शेयर कर दे तो वो जो रिस्पेक्टिव मेंबर है वो आपसे खुद कांटेक्ट कर ले, ठीक है। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, एनी चैलेंज, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? किसी और का कोई सवाल है, कोई चैलेंज है? अहमद भाई माइक खोल के बताइएगा, चैट जीपीटी हो गया, कॉल नहीं हो गया, मजा आया या नहीं करने में या नहीं? मैंने किया नहीं था वालेकुम क्योंकि सलाम। इंटरनेट इशू यहाँ पर काफ़ी है, मगर आज मैं करूँगा। अहमद भाई काम ज्यादा हो जाएगा। मैं एक्चुअली कैनवा पोस्ट बना रहा था, वो जो मेरे मिसिंग थे तो मैंने अभी पोस्ट किए हैं, लेकिन आज मैं कर दूंगा डे 5। चले, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जी लाइबा, आपने कॉल नहीं ट्राई किया? आपने ट्राई किया उसको और आपने अभी तक अपनी शीट फिल करना स्टार्ट नहीं की लाइबा? आपकी भी खाली है, इशान की भी खाली है, अहमद भाई ने वो उसको कल हमें स्टार्ट आपसे आज किया। पूछना भी था क्लास में कि वो जो शीट पे है वो अहमद मुस्तफा भाई का नाम आ रहा है। लाइबा, उसके ना राइट साइड पे दो एलिगेटर्स का साइन है, ठीक है। वो जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, उनका साइन है। जब आप उन पे क्लिक करोगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके अपना नेम भी मिल जाएगा। वहां नहीं करना, तो लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरी फिंगर नजर आ रही है, इस पे क्लिक करोगे, आप अपनी वो पूरी लिस्ट पढ़ते जाओगे, सारे पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, अपने नेम पे क्लिक करोगे तो आपकी शीट ओपन हो जाएगी। दोनों में से जो ऑप्शन ठीक लगे, आसान लगे, उस पर क्लिक कर ले, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। मैं आज ही करके तुम्हें ओके, पोस्ट कर दूंगी। हाँ ठीक है। आप कुरंगी कैंपस जा रहे हो कि नहीं जा रहे, घर पे ही हो? मैं जा रही हूँ, रोज रोज जा रही हूँ। फिर राहत देख ले, फिर आपके होते हुए देख ले बच्ची को शीट नहीं मिल रही अपनी। मैं आपको एक बार बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई, अभी 5 मिनट पहले की बात है। आज मैंने जो आपने परसों को स्ट्रीमयार्ड की क्लास दी थी ना, तो हम्म। वो मैंने आज स्कूल कुरंगी कैंपस पे जाके दी थी। और वो अभी एडिट करके मैंने वाह, अपनी पोस्ट की है। वो मैंने पोस्ट किया, सारे हाँ ने अपने इसमें प्रोफाइल पे ना शेयर किया है। मैं इतनी खुश जबरदस्त। थी, मुझे इतनी लाइबा ज्यादा बताओ तो जबरदस्त। सही। लाइबा बताओ तो सही, बोला किसने था आपको? मिस राहत ने बोला था, मिस राहत कहती डेली डेली करो। पहले तो मैं ज्यादा कर रही, मैं अपनी शक्ल देख रही, मैंने कहा यार मैं करूँ, मैंने कहा चलो खैर है, करूंगी तो आएगा ना। अब जब हाँ किया, बिल्कुल मैं ऐसे ही अभी है। अभी मेरा नोटिफिकेशन है, मैं इतना ज्यादा खुश, मैं पागल हो रही हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये तो अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। बट राहत आपकी, आप प्लीज इनको थोड़ा सा गूगल शीट के बारे में भी गाइड कीजिएगा ताकि वो अपनी शीट को अपडेट करना शुरू कर दें। और आज आपकी मिस सोलत जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही, शी इज नॉट विद अस, उनको भी देख लीजिएगा, और उनकी शीट नहीं है तो वो मुझे बता दे। लाइबा की नहीं थी, मैंने लाइबा की ऐड कर दी, ठीक है। जी मरियम, ओके जी, इन्होंने मुझे आसिफ भाई बोला था। आपको। हम्म।
इन्होंने मुझे बताया था, उस वक्त थोड़ी सी मसरूफियत थी, सारी बातें फिजिकल स्कूल में आपको पता है कई मामला हमें देखने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, तो ठीक इसलिए ठीक। मैं इन्हें टाइम नहीं दे पाई। इन्होंने मुझसे बोला तो था, तो इंशाल्लाह सुबह को चलो, देख लेंगे उसको ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आसिफ भाई। बेटा मुझे इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा नहीं मिला। आसिफ भाई, पहले तो आप एक अच्छे से हेडफोन ले लें, इशाल से पूछ ले किस ब्रांड के हैं, ये वाले हेडफोन मंगवा लें आप, ताकि मैं ठीक से सुन सकूं। आधी बात मुझे समझ में आती है, आधी मुझे समझ नहीं पड़ती है आपने क्या कहा। आवाज नहीं आ रही है? आप बेहतर हुई है। एनर्जी के साथ बोला करें, रात का खाना टाइम से पहले खा लिया करें, कोई 8 बजे खा लिया करें ताकि ज्यादा एनर्जी आ जाए। क्लास की वजह से जल्दी खा लेता हूँ, अभी पहले नहीं कर रहा है। सवाल बताइएगा। अच्छा, मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है, कोई बच्चा अलाइन नहीं हुआ है मेरे साथ। इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, बच्चा अलाइन नहीं हुआ। मैंने बच्चों का नंबर फॉरवर्ड कर दिए थे, लेकिन आजकल हम अच्छा। एक और टास्क पे ज्यादा मसरूफ है, इसलिए जो है वो थोड़े इंटरव्यू स्लो डाउन है। लेकिन इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जो है मैंने अपने 2 से 4 फैसिलिटेटर भी उनके पीछे लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। और यहाँ ओके पे जो ओके। हमारे पास असिस्टेंट में मौजूद है नसीमुल्लाह भाई, वो भी आप सबको कनेक्ट कराना शुरू कर देंगे, तो आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मोर और लेस आपके कल या परसों में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे सबके। थैंक यू सो ठीक वेरी है, मच। ओके ओके। जी मिस लैला। मैम मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि मैं आसिफ भाई को कह रही थी कि मैं हाजिर हूँ इंटरव्यू के लिए। तो आसिफ भाई इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, दें आप मिस लैला को एक क्लास के बाद पहला इंटरव्यू दे दें आप। ठीक है, चलो जबरदस्त हो गया जी। सबसे पहले हम फिर स्ट्रीमयार्ड की क्लास कर लें। स्ट्रीमयार्ड का इशू था तो उसी को देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने टास्क की तरफ चलते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू, और आई होप ठीक हो। अच्छा जी, हम यहाँ पे जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं आप उसी में ओपन कर लें, और यहाँ पे आप स्ट्रीमयार्ड को ओपन कर लें। इंटरनेट थोड़ा स्लो है क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से बारिश नहीं रुक रही। दुआ करें कि यहाँ पे बारिश रुक जाए, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है यहाँ पे सब लोगों का। अच्छा जी, जैसे कि अभी एक और बात बता दूं कि हमने यहाँ पे एक इंटरव्यू स्टार्ट किया, या हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसमें चैट जीपीटी के साथ चैट कर रहे थे, या कॉलिनी के साथ हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी। अब क्या हुआ कि अभी वो स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उससे पहले हमारा जो है कोई और काम बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद आ गया, या हमारा इंटरनेट ग्लिच कर गया, स्ट्रीमयार्ड ने परमिशन नहीं दी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है कि आपने पूरा स्टूडियो प्रिपेयर कर लिया अपना, तो फिर आप स्टूडियो के अंदर एंटर होने से रह गए। ठीक है, तो इस तरह का वो आपकी अपकमिंग सेशन में इस तरह से आपका वो स्टूडियो प्रिपेयर्ड आपको नजर आएगा। यहाँ सिर्फ आपको ये करना होता है कि अगर आपके स्टूडियो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ 14 जुलाई का, जिस दिन मैंने ये सेशन दिया था ये उस दिन का है, और मैंने चैट जीपीटी का फर्दर सेशन नहीं कंडक्ट किया था लाइव, कॉलोनी का किया था, इसलिए कॉलोनी वाला पूरा चला गया और यहाँ पे शो नहीं हो रहा। दिस इज शोइंग, ये आपका पेंडिंग टास्क है जो कि आपने इतनी देर पहले जो है प्रिपेयर करके रखा था अपना स्टूडियो, और आपने इसको फर्दर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसी स्टूडियो में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पे मिस लुबना का सवाल भी जो है उसका जवाब मिल जाएगा कि अगर आपका यहाँ पे स्टूडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप इसी को एंटर स्टूडियो कर लें। एंटर स्टूडियो करते के साथ ही ओके, यहाँ पे अब सिर्फ ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कि आप उनका नाम और ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। समटाइम सिर्फ आपका डिस्प्ले नेम ही शो हो रहा होता है, हेडलाइन भी शो नहीं होती, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोफोन चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है। अभी तो खैर वो शो नहीं कर रहा कि ये वर्किंग है कि नहीं है। हम वो कह रहे हैं एंटर विदाउट माइक एंड कैमरा, क्या आपने यहाँ का कैमरा और माइक ऑन नहीं किया, आप इसके बगैर ही एंटर हो जाए। अब हम जैसे अनम्यूट पे क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा माइक जो है वो वर्किंग में है। ठीक है, अब हमने एंटर स्टूडियो कर लिया, हम एंटर स्टूडियो में आ गए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब मैंने चैट जीपीटी को जब प्रिपेयर किया था उस दिन का टाइटल ही मुझे कंडक्ट करना है, या मुझे आज का टाइटल कंडक्ट करना है। अब टाइटल चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने स्टूडियो के अंदर रहते हुए ही
एडिट पे राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल के साथ यहाँ पे गो लाइक का जहाँ ऑप्शन होता है उसके साथ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नजर आएगा आपको। टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन नजर आए, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ जाके आप इसका चाहे तो टाइटल एडिट कर सकती हैं और चाहे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हम इसको यहीं से एडिट कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए ये चीज, ठीक। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सेव चेंजेस कर देंगे, जो हमने चेंजेस की हैं वो सेव हो जाए और जब हम लाइव जाएंगे तो ये हमें नजर आ जाएगा। अच्छा, समटाइम क्या होता है, हमें भूल जाता है कि हमने इसको एडिट भी करना है, हम डायरेक्टली लाइव पे क्लिक करते हैं और लाइव चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें दोबारा से याद आता है, कोई कमेंट सेक्शन में लिखता है आपके इंटरव्यू जो है वो तो मिस लाइबा के साथ स्केड्यूल था, लैला के साथ स्केड्यूल है और आपने लाइबा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप दोबारा एडिट पे जाके ड्यूरिंग इंटरव्यू आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू आप अपना टाइटल चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये टाइटल क्यों चेंज करना जरूरी है, ये भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फेसबुक से जाके। जब हम यहाँ से टाइटल चेंज नहीं करते ना तो हमारी फेसबुक पे टाइटल वही रहेगा जो जिसके साथ हमने लिखा हुआ था और हमने इसको एडिट नहीं किया तो टाइटल चेंज नहीं होगा। और टाइटल बाद में एडिटेबल भी नहीं होता, ये तब तक एडिटेबल है जब तक आप स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही आपने स्टूडियो का लाइव या रिकॉर्डिंग लाइव एंड कर दिया, रिकॉर्डिंग में तो ये ऑप्शन नहीं है, लाइव एंड कर दिया तो आपका ये वाला जो टाइटल वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो ड्यूरिंग इंटरव्यू अलाइन कर लें, चाहे आप आफ्टर द इंटरव्यू उसको अलाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल, कि आप इसको जब चाहे इसको चेंज कर सकती हैं, जो चाहे इसमें एडिट कर सकते हैं। टाइटल में आप एडिट नहीं कर पाओगे, टाइटल तब तक के लिए अवेलेबल है जब तक 25 से 30 मिनट आप स्टूडियो में मौजूद हैं, तब तक आप उसको एडिट कर पाएंगे। जैसे आपका एंड होगा आप एडिट नहीं करेंगे, और जो भी चेंजिंग करेंगे उसके बाद उसको सेव करना जरूरी है। अगर विदाउट सेव आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो फिर आपकी जो न्यू एडिशन था वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम जैसे कि फेसबुक पे चलते हैं वापस। नहीं, ये तो मुझे फेसबुक चाहिए, यहाँ वाला फेसबुक खोल ले और इसको, अच्छा। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, मरियम जुल्फकार पे, अब ये जैसे जैस्मिन का इंटरव्यू है, आपको टाइटल नहीं नजर आ रहा, आपको वो डिस्क्रिप्शन सारी नजर आ रही है जो कि मैंने लिखी हुई है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ ना, और ये बड़ी स्क्रीन पे आके प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा और ये आप सब सुनेंगे और आपको आवाज भी आएगी। खैर मैंने साउंड शेयर किया तो शायद आवाज ना आए, तो हाँ, यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करते हैं हम। अब ये देखिएगा, ये वो टाइटल जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, बहुत बोल्ड और कैपिटल लेटर, मतलब फॉन्ट साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। ये वाला जो ये आपका वो टाइटल है जो आपने अपने स्ट्रीमयार्ड के अंदर सेट किया था। ये वो टाइटल है जो आपका स्ट्रीमयार्ड के अंदर रहते हुए चेंज होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रीमयार्ड को छोड़ देते हैं, आपका लाइफ एंड हो जाता है, फिर आप इस टाइटल को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप इस सिर्फ ये वाली जो नीचे डिस्क्रिप्शन है आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको इसको चेंज करना है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप एडिट पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू इसको एडिट नहीं किया तो ये ऐसा ही जाएगा। और एक बार ऐसा हुआ भी था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि मैंने नीचे बैनर भी उसी पर्सन का बनाया हुआ था जिसके साथ मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था, और उसके बाद मैंने उसका टाइटल भी वही लिखा हुआ था जिसके साथ मैंने इंटरव्यू पहले जो है वो कर लिया था। तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बताया कि मैं आपने ये चेंज नहीं किया, इसको एडिट कर ले। तो टाइटल तो एडिट हो गया, बैनर मैं फिर भूल गई और पूरे इंटरव्यू में उस गेस्ट के लिए, बेचारे के लिए बैनर चेंज हुआ ही नहीं और दूसरे गेस्ट का ही बैनर लगा रह गया। तो ये कुछ चीजें होती है जो कि हमें थोड़ा माइंडफुली करनी पड़ती हैं। और अगर हम ड्यूरिंग इंटरव्यू इन चीजों को फौरन फौरन देख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है और गेस्ट के लिए भी अप्रोप्रिएट हो जाता है और आपके लिए भी बाद में अगर कोई मेमोरी आप शेयर कर रहे हैं तो एक अच्छी मेमोरी शेयर होगी। यहाँ तक मिस हमारी क्या नाम है, मिस लुबना, यहाँ तक सवाल आपका क्लियर हो गया?
यस मैम, क्लियर ठीक हो है, गया। इस तरह टैगलाइन से आपका एडिट, अभी भी। जैसे आपने, जी जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे आपने अपने नाम के नीचे लिखे थे ना, टैगलाइन वाइस प्रिंसिपल एट रेहान ऑनलाइन एकेडमी, वो जब हम लिख देते हैं और जब हम इंटर स्टूडियो हो जाते हैं उसके बाद एडिट हो सकती है? हाँ, वो भी हो सकती है। ये वो देखिएगा, बता दें। अभी जैसे हम दोबारा स्क्रीन पे मैं कर, ये देखिए। अच्छा, आप उसको हेडलाइन कहते हैं, हम उसको हेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, वो हेडलाइन चेंज करनी है ना, तो जब आप यहाँ स्टूडियो में आते हैं ना, तो ये आपके होस्ट के पास ये सारे राइट्स होस्ट के हैं। ठीक है, अगर कोई गेस्ट भी आता है ना और वो कहता है कि मुझे हेडलाइन नहीं मिल रही, मुझे अपना नेम भी चेंज करना नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जिस तरह से ये छोटी सी पिक्चर मेरी आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, स्टूडियो में मैंने अपने आप को ऐड टू स्टेज करना है यहाँ पे, इसके राइट टॉप कॉर्नर पे देखिए 3 डॉट्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट नेम एंड हेडलाइन, इस पे क्लिक करके आप अपनी हेडलाइन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने गेस्ट की भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, आप अपने गेस्ट को भी रीनेम कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है सर, आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए कर देती हूँ। समटाइम आपको बहुत जो है वो सीनियर एज सिटीजन है वो मिलेंगे, तो वो फिर कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो आप खुद कर दे मैं, तो फिर आप खुद उनके लिए सेट कर सकते हैं। जी मिस इरम, आपका क्या सवाल है? ये मिस मैंने ये पूछना था कि आपने ये जो टाइटल की बता रही है ना आप, तो आपने जो टाइटल डाला है वो काफी बड़ा है, फॉन्ट है और बोल्ड है। ये आपने कैसे किया? हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं आ रही होती। मैंने नहीं किया ये, बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम यार्ड नहीं किया ये, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि जब हम ये टाइटल स्ट्रीम यार्ड के अंदर लिख लेते हैं ना, और हम अपनी फेसबुक पे वापस जाके अपने उस इंटरव्यू को देखेंगे, तो हम उसको, जब हम नॉर्मल अपनी पोस्ट में देख रहे होते हैं तो हमें ये टाइटल नजर नहीं आता, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना चाहेंगे तो राइट साइड पे ना एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपका नाम, उसके नीचे आपका जो इंटरव्यू का टाइटल है वो नजर आता है, फिर आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन नजर आती है। तो ये सबका नजर आएगा अगर आपने अपना टाइटल जो है वो लिखा, और टाइटल के बगैर तो स्ट्रीमयार्ड आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी का इंटरव्यू कर ले या कोई भी नहीं सेशन कंडक्ट। नहीं, मैं ये पूछ रही, इसका साइज ज्यादा बड़ा और बोल्ड है, मैं भी लिखा है टाइटल, और अभी ये ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। मैं फिर दोबारा इसको चेक कर लूँ। ये मैंने आप ठीक नहीं कह रहे किया, ये बाय डिफॉल्ट है। अभी आप हैं। ठीक है। अपनी स्क्रीन पे भी जाके उसको क्लिक करेंगे ना वीडियो को, इस उसी वीडियो को जो देखना है, अभी जैसे मैंने आपकी वीडियो के बारे में 2-4 चीजें भी शेयर करनी है, तो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे करके दिखा दूंगी, आपका भी बोल्ड नजर आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम पूरी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, अच्छा मैंने अपनी कैनवा भी चेक करनी है, स्टोरी भी चेक करनी है, अपने टेड टॉक के रिव्यूज भी चेक करने हैं, तब ये नहीं नजर आएगा। ये आपको तब नजर आएगा जब आप स्पेसिफिकली वही वीडियो को क्लिक करके उसको सुनेगी, तो आपको ये राइट साइड पे फिर वो विंडो में नजर आता है। अदरवाइज नॉर्मल वीडियो में ये नजर नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल में हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन नजर आती है। जी लाइबा। मैं इसको ये पूछना था कि स्ट्रीमयार्ड पे हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो हमें फेसबुक पे लाइव जाना है। अब मेरे पे ये ऑप्शन आ रहा है कि आपके 100 फॉलोवर्स होने चाहिए और 60 डेज होने चाहिए। 100 फॉलोवर्स हैं, 60 डेज नहीं है। अब मैं लाइव कैसे जाऊँ? रिकॉर्डिंग 60 करके डेज तो मैंने जून में मतलब अभी आके अपना अकाउंट बनाया, वो डाउनलोड नहीं हो सकती। तो मैंने एक बड़ी अच्छी जूम की ऐप जो फीचर है वो शेयर किया था, और जूम की वीडियो पूरी बना के ग्रुप में शेयर किया। मेरी बहन उसको देख लो, 11 मिनट की है, लेकिन काफी चीजें जूम की उसमें एक्सप्लेन है। आप वो देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी जूम पे कैसे रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया। एंड एनी अदर पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, किसी और का कोई सवाल हो, किसी और की कोई क्यूरी हो? मेरा मैंने अभी जो है वो चैट के अंदर हमारा जो है ना बैकग्राउंड शेयर किया हुआ है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और उसको इनेबल कर लीजिए अपने क्लास के लिए। ठीक है, और डे टू डे उसको ऐड कर लीजिए, लाइव आप भी कर ले और उसको ऐड कर ले अपने बैकग्राउंड में। ओके, 2 चीजें आज मैंने नोटिस की। मैम एक, फायदा खालिद जी मेरे। मैम मेरे में लैपटॉप पे ना बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके कल ये सारी चीजें अलाइन हो रही है। नसीमुल्लाह भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर आपने ये करना है। ठीक हो गया। 2 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और वो शायद अभी जो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने नहीं किया उसको जब तक आप करेंगी नहीं ना, आपके लिए इनेबल नहीं होगा। तो जिन पार्टिसिपेंट ने स्टीम यार्ड को यूज करना शुरू कर दिया उसको वो चेक कर ले। मैं अभी अपना प्रोफाइल शेयर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मिस इरम के प्रोफाइल से बताऊंगी, और फिर मैं अपने प्रोफाइल से आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे ही अच्छा, मिस जवेरिया हमारे साथ है। नसीमुल्लाह भाई जरा कंफर्म कीजिएगा, मैं जिन बाबा का भी अभी गाइड कर दूँ। जी जी।
ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पे है इरम, इरम इरम आपका सेकंड नेम भूल गई मैं, ये तो दूसरी इरम वाली है, हमारे वाली ये इरम आप वाली। यू लिख रही है ना, ये दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम एज है, अच्छा जी। ये हम इस इरम के प्रोफाइल पे आ गए, ये तो इंट्रोडक्शन है। हाँ, दिस इज, सबसे पहली बात मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हम पोस्ट करेंगे उसको फ्रेंड्स पे नहीं पोस्ट करेंगे, दैट शुड बी पब्लिक, ठीक है। अब आप क्या करेंगी, अब आप इसके थ्री डॉट्स पे राइट साइड पे क्लिक करके एडिट ऑडियंस पे क्लिक करेंगी और इसको पब्लिक कर देंगी, ठीक है, ये पब्लिक हो जाएगा। इसी तरह से आपका कॉलोनी का सेशन है, उसको भी आपने इसी तरह से पब्लिक करना है, ठीक है, ये पब्लिक है आपका, ठीक है। ये शायद आपने बाद में बाय डिफॉल्ट कर दिया, ये भी पब्लिक है। ये नहीं, ये चैट मैंने जीपीटी इसको थोड़ा सा एडिट करना था, इसलिए जो ना थोड़ा सा काम इस पे रह गया, ये जो चैट जीपीटी वाला है, तो मैंने इसको करके ना फिर सेट करना था। अभी इतना वो हेक्टिक हो जाता ना, 3 3 4 चैट 4 काम। जीपीटी वाला पे एडिट करना था या आपको उस पे चैट एडिट करना था जीपीटी अपने? मैंने इसकी ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट करनी थी, फिर मैं इसको ना वो कर लेती इसलिए, वरना सब कुछ पब्लिक है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कंडक्शन करते हुए सुना था आपका, तब भी ये फ्रेंड्स पे ही था। अच्छा, ये लाइव जो है वो हमने इसको पब्लिकली लाइव करना होता है, अब ये ये लाइव होगा कैसे? हाँ, ये मुझे बताया, ये मैं फिर सेट कर लूँ। हम यहाँ पे अपनी राइट साइड के अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे, राइट कॉर्नर पे ये जो आपको छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है उसमें सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, एंड देन अगेन सेटिंग, साथ साथ प्लीज इसको कर लीजिएगा। अब मैं बार बार कह रही हूँ, ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने StreamYard को यूज कर लिया, कनेक्ट कर लिया अपनी फेसबुक के साथ। जिन बहन भाइयों ने अभी तक StreamYard के साथ कनेक्ट नहीं किया है ना, उनको पहले StreamYard को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे सेटिंग पर आ गई, बिजनेस इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे आप बिजनेस इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी हमने जो एक्स्ट्रा वेबसाइट जो है जिनकी स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं वो यहाँ पे एडेड है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अच्छा, ये जूम वाला तो मैंने करना ही छोड़ दिया, इस वजह से ये तो एक्सपायर्ड हो गया मेरा। StreamYard में कह रही हूँ और ये आपको नजर आ रहा है 23 मार्च 2024 से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और रीस्ट्रीम जो है ये जून 30 2025 से हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तब से ये कनेक्टेड है। वैसे मुझे पर्सनली रीस्ट्रीम नहीं पसंद, पर एनी आपने यहाँ पे राइट साइड पे व्यू एंड एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम व्यू एंड एडिट पे क्लिक करते हैं, इस तरह एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस विंडो की ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे ग्रे कलर की बार है, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आए, ये लास्ट में आपको मिलेगा कैन दिस बिजनेस इंटीग्रेशन सेंड यू नोटिफिकेशन, इसको ऑलरेडी वो यस होगा। इसके बाद हु कैन सी यू यूज दिस बिजनेस इंटीग्रेशन, इसको आपने क्लिक करके पब्लिक करना होता है। ये क्या होता है कि जब हम अपने फेसबुक को अपने लिए यूज कर रहे होते हैं ना, प्राइवेटली पर्सनल अकाउंट हमने सिर्फ फ्रेंड्स पे सेट किया होता है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही फ्रेंड पे सेट होता है। तो जैसे हमने अपनी पोस्ट की बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक किया था कि हमारी अब हर पोस्ट जो हम अपलोड करेंगे वो पब्लिकली पोस्ट होगी, इसी तरह से हमने लाइव सेशन को भी यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको पब्लिक कर देना है। जब आप एक बार यहाँ से क्लिक कर देंगे और उसके बाद लास्ट में जाके आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेव का, आप इसको सेव कर देंगे और ये फिर इसकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। फिर आप जब भी कोई सेशन कंडक्ट करेंगे वो आपका पब्लिकली ही कंडक्ट होगा, आपको उसको खुद जाके एडिट ऑडियंस करके उसको मैन्युअली पब्लिक नहीं कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जिनके शुरू में ये जो पब्लिक वाला है ना, ये उनको शो ही नहीं होगा, उनको फ्रेंड्स ओनली मी और कस्टम वाला ऑप्शन शो होगा, तो वो फ्रेंड्स पे ही क्लिक करेंगे। बट उनको फिर हर बार ख्याल करना है कि हर हमें लाइव सेशन जो है मैन्युअली उसको जो है वो मैंने पब्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक तो ये रूल एंड रेगुलेशन है, दूसरा आपको जब पब्लिक में बहुत सारे फॉलोअर्स भी देखेंगे ना तो एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा, फिर वो लाइक और कमेंट भी करते हैं, बड़ा मजा आता है देख देख के सारी चीजें।
अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा, अब उनका कब ये पब्लिक ऑटोमेटिकली वो कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 to 15 सेशन के बाद जब स्ट्रीमयार्ड को पता चल जाता है अच्छा ये बंदा रोज ही आ जाता है स्ट्रीमयार्ड पे, ये रोज ही आके इसको यूज करता है, तो 10 to 15 सेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो आपको आपकी फेसबुक पे भी ये सेटिंग अलाउ कर देता है, फिर आप दोबारा जाके उसको वहां से बाय डिफॉल्ट पब्लिक वाली सेटिंग को सेट कर देंगे तो वो सेट हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे कल की रिकैप्स जो कि आप सबके साथ शेयर करनी थी मैंने, और मिस जवेरिया भी आ गई। अब मैं आप सबके साथ जिन बाबा शेयर कर दूं ताकि आप सबको एक दफा रिवाइज हो जाए, और जिन बाबा को कैसे यूज करते हैं उसके लिए। सुलेमान भाई आपने वाला लिखा हुआ है, सुलेमान वाला, ये कौन सा वाला है? पहले मुझे ये आपसे सवाल करना था कि ये कौन सा वाला है। आपने अपनी गूगल शीट पे भी लिखा और अपना नेम भी व्हाट्सएप पे इसी तरह सेट किया है, उसको ठीक कर ले। लाइबा के बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अब इस राहत ये भी कल चेक कर लीजिएगा, लाइबा लैपटॉप लेके आएंगी इसके बैकग्राउंड का ऑप्शन को इनेबल करा दे, ठीक है जी। मिस फायदा आपका कौन सा सवाल है? हाँ, मैं जब लाइव स्ट्रीम या यूज कर रही होती हूँ तो उसमें कमेंट्स नहीं शो हो रहे होते हैं, तो ऐसा क्या कमेंट्स पेड वर्जन में ही सिर्फ और सिर्फ शो हो रहे होते हैं? नहीं मिस फायदा, कमेंट्स सेक्शन जो है वो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है और पेड में भी अवेलेबल। कमेंट्स शो नहीं होते, हमें खुद हाँ। शो करने होते। मतलब आप जो राइट साइड पे आपका कमेंट सेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी ये स्ट्रीमयार्ड की स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो मैंने स्ट्रीमयार्ड ऑन किया नहीं, स्ट्रीमयार्ड मुझे फिर ऑन कर, एक मिनट दीजिएगा मुझे, आई जस्ट गो फॉर द स्ट्रीम। ओके, आई एंटर्ड द स्टूडियो। यस। ओके, विदाउट माइक एंड कैमरा। ओके, अब ये देखिएगा कि हमारे कमेंट समटाइम इसलिए शो नहीं होते क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत सेलेक्ट किया होता है। मे बी हम बैनर्स में हों, मे बी हम मीडिया एसेट्स पे हों, और मे बी हम स्टाइल नहीं। में, पीपल, प्राइवेट, किसी में भी हम क्लिक कर लेते हैं। दैट्स व्हाई हम खुद भी कमेंट्स नहीं देख रहे होते, ठीक है। और यहाँ पे हमें काउंटिंग नजर आ रही होती है, कमेंट सेक्शन में रेड कलर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है अगर कोई कमेंट करना शुरू होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे एक तो चेक लगा के रखना है ताकि ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई भी कमेंट करे आप उसको देख लें। अभी बाय डिफॉल्ट एक ही कमेंट हमारे पास ये स्ट्रीमयार्ड ने दिया होता है। अब इसको यहाँ पे सिर्फ मैं और अब मैं ही पढ़ सकती हूँ अगर मैं एआई के साथ सेशन कर रही हूँ, और अगर कोई मेरे गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो सिर्फ मैं और मेरा गेस्ट इस कमेंट को देख सकता है, नॉट एनीवन एल्स। अब क्या होगा कि मुझे अगर इसी कमेंट को अप्रिशिएट करना है टू समबडी हु कमेंटेड ऑन माय लाइव पॉडकास्ट, तो मुझे इस पे शो पे क्लिक करके इसको शो करना है अपने स्टूडियो में। सी, अब ये आपके स्टूडियो में है, एक्चुअली मैम अब ये अब आपके गेस्ट ये भी पढ़ सकते हैं, अभी आपके गेस्ट भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, और लाइव ऑडियंस भी इसको देख सकती है, ठीक है। और जब आप एक सर्टेन लाइक 30 सेकेंड या आफ्टर 1 मिनट आप इसको रिमूव कर देते हैं अपने स्टूडियो से ना, तो आप दोबारा इसी कमेंट सेक्शन में हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके स्टूडियो से ये रिमूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इज दैट सो फायदा? मैम यस, अब ये थैंक जो नए वर्जन आ रहे हैं ना, जैसे मैंने स्ट्रीम भी ऐड किया था, उसमें जब हम ये कमेंट को इनेबल करने लगते हैं ना, फिर वो कहता है कि पेड वर्जन ले। नहीं, उस वाले को छोड़ दें, लेकिन अगर आप अभी करंट वाला भी कोई भी स्ट्रीमयार्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें इसी तरह से ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे अपने स्टूडियो के अंदर कमेंट को शो करना चाह रहे हैं तो इस शो पे क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट यहाँ स्टूडियो में शो हो जाता है। अगर आप मुझे अपना स्ट्रीमयार्ड दिखा दे तो शायद मैं बेहतर समझ सकूं कि अभी स्ट्रीमयार्ड में क्या चेंजिंग करेंगे। यस मिस सेरम, शेयर योर स्क्रीन। StreamYard please. Okay.
जी मिस, अब ये स्ट्रीमयार्ड का जो कमेंट है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको शो का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करें। सी, अगर आप इस कमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, आपके ऑडियंस भी देख सकते हैं, और जिस पर्सन ने ये कमेंट किया आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब आप हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके स्टूडियो से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। मिस जवेरिया आप हमारे साथ हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। मिस लुटना आप भी। अब मैं आपको जिन बाबा का दोबारा से एक बार बता रही हूँ, ठीक है? आप सबको मैंने वेबसाइट सबके लिए शेयर कर दिया था जिन बाबा का, आप उसको यूज कर सकते हैं। अ, अभी जैसे ये हमारा एक दूसरा चैनल है रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जिन बाबा डॉट नेट के नाम से इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे। अगर तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं जब मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपके पास जिन बाबा जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जिन बाबा पे अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन करना है। अच्छा, यूट्यूब पे अपलोड जो है वो फ्री है, इसलिए आपको जो है वो यूट्यूब वाला अपलोड जो है वो अवेलेबल है। आप इसी पे क्लिक करेंगे, अपलोड टू यूट्यूब, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक यूजर नेम ऐड करना है। लेट्स सपोज कि आप मरियम ऐड कर रहे हैं, फिर अपना ईमेल एड्रेस दे दें जिस ईमेल के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दें, एंड देन आप जो है उसके बाद अपना कोड ऐड कर दें। एंड ये मुझसे गलती होगी, ये मुझे यहाँ वाला नहीं खोलना था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे jinbaba.net पे, और यहाँ उसके बाद हमारे पास ये यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपना जो है वो सारा ये साइन अप करना है। फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे, उसके बाद इसको रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली साइन अप रहेगा। अब मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, ये रेफरेंस कोड ऑप्शनल है, इसको ना भी ऐड करें तो चलेगा, ठीक है? और कोई कोड अगर आप ऐड करते हैं तो समटाइम कोई ग्लिच भी आ सकता है, इसलिए इसको ऑप्शनली कंसिडर कीजिएगा, इसको नहीं ऐड कीजिएगा। देन क्लिक ऑन साइन अप, फिर आप साइन अप पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे, फिर वो यहाँ पे एक छोटी सी आपको मैसेज देता है कि क्या आप अपना जो ये वाला पासवर्ड है उसको सेव करना चाहते हैं इस वेबसाइट में। अगर आप उसको सेव कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बार बार आपको पासवर्ड और ईमेल एंटर नहीं करना पड़ता है। जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन, आप मेरी तरह लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे और आपके सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये वो आपको कह रहा है प्रीमियम प्लान अगर एक्टिव करना है तो उस पर 1000 वीडियोज है, जिसमें से मैंने 16 वीडियोज अब तक अपलोड भी कर दी हैं, और मुझे अभी हार्डली एक हफ्ता हुआ ये मिले हुए। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि सोशल मीडिया पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इसकी जो है वो रीचिंग आपको मिल सकती है, मतलब आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आप लॉग इन विद यूट्यूब करते हैं। जब हम लॉग इन विद यूट्यूब करेंगे तो आपको वो ईमेल एड्रेस सबसे पहले ऐड करना है जिस ईमेल के थ्रू आप अपना यूट्यूब अकाउंट यूज कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरा ये ऑफिशियल चैनल का ईमेल है, तो मैं ऑफिशियल चैनल का ईमेल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में भी मैंने वही ऐड किया जो मेरा ऑफिशियल चैनल का है, और यहाँ पे भी मुझे वही ऐड करना है क्योंकि मुझे अपने ऑफिशियल चैनल की वीडियोस अपलोड करनी है। सिमिलर मैंने में अगर आप पर्सनली अपने इसको यूज करना चाह रहे हो तो आप अपने पर्सनल ईमेल भी ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वेयर बॉक्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है? इस जगह पे उन पे चेक लगाना जरूरी है। आप उन पे चेक लगा लेंगे तो उसके बाद वो कहेगा कंटिन्यू, आप दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, दोबारा से वो अपने प्लान की ही प्रमोशन कर रहा है, उसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने फेसबुक वीडियो यूआरएल अपलोड करना है। अब जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरी सुबह एक क्लास हुई थी और मैंने उसको जो है वो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करना है यूट्यूब पे, ठीक है? ताकि यूट्यूब के ऑडियंस भी हमारे क्लासेस को फॉलो कर सके और फेसबुक वाले भी फॉलो कर सके। तो वो सबसे पहले मैं वो अपनी क्लास देख लूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, ये हमारी सुबह की क्लास थी, ठीक है?
और मुझे इसी क्लास को अपलोड करना है अपने चैनल पे। तो मुझे सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है ताकि हम इस डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकें वहां पे। मैंने इसको कॉपी किया और सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन के कॉलम को फिल किया, क्योंकि बाद में ये मुश्किल हो रहा था इसको ऐड करना कि क्या ऐड करना। ओके, और यहाँ पे ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपने कोई टाइटल ऐड करना है, जैसे मैं इस क्लास के लिए ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे वो जो स्ट्रीम यार्ड में आप टाइटल लिखते हैं ना, उसी टाइटल को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका टाइटल ऐड होता है। Then ठीक हो गया। अब लास्ट में बारी आती है यूआरएल की। तो अब हम दूसरे ब्राउजर में वहां से जाएंगे यहाँ पे, और इस वीडियो के पैरेलल नेम पे 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और हम अपने jinbaba.net पे आ गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे हम पेस्ट करते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अपलोड टू यूट्यूब पे क्लिक कर देंगे और लास्ट में आपको इसके स्टैटिस्टिक्स नजर आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी वीडियो कितनी अपलोड हो रही है। अभी तो कोई एमबीज का साइज भी नहीं शो कर रहा है कितने एमबीज की ये वीडियो है। अब बता रहा है कि इतनी जो है 70% में इतने एमबीज हैं और वो इतनी अपलोड होने वाली है। और अब वो फुल साइज की जो वीडियो है वो उसने शुरू कर दी है। 100% प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब वो वीडियो वहां पे अपलोड हो जाएगी एंड जस्ट इट टेक्स 5 मिनट्स। अभी 10 बज गए हैं, 10:05 के बाद रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और अगर आपकी 2 मिनट से 5 मिनट की वीडियो है तो वो सिर्फ 2 मिनट देखकर आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप खुद मैन्युअली जाके उसको पोस्ट करें और ये सब कुछ करें, इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपकी कि आप इसे डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो सॉरी वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप में मौजूद है, इसको यूज कीजिए और फायदा उठाएं। फ्री में 500 वीडियो का आपके पास ऑप्शन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे 2 महीने के बूट कैंप में हम 500 का जो एक टारगेट है उसको टच भी करते हैं। हार्डली 150 तक का टारगेट हमारा अचीव होता है, इससे ज्यादा वीडियो से नहीं बनती। चाहे आप अपने टेड टॉक भी काउंट कर लें, अपने इंटरव्यूज काउंट कर लें और अपने एआई सेशंस भी काउंट कर लें, इससे ज्यादा का टारगेट नहीं बनता। तो आपके पास फ्री में ये अवेलेबल है, इसको यूज कीजिए और यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा अपलोड होता जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो भी साथ साथ जो है उसकी चीजें चलती रहेंगी। फिर आप क्या करें, फिर जब ये वीडियो पोस्ट हो जाए रात में क्लास से आधा घंटा पहले दोबारा लैपटॉप पे बैठे अपने कैमरा एंगल को सेट करना, सारी चीजें करनी, उसी टाइम पे बैठ के अपनी गूगल शीट को फिल कर लें। चारों चैनल को ऑन कर लें, स्ट्रीम अपनी चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट लगेंगे, गूगल शीट फिल हो जाएगी। चाहे तो दिन में कोई ऐसा टाइम स्लॉट ढूंढे जब आप फ्री हूं और आप 5 मिनट निकालें और अपनी गूगल शीट फिल कर ले, तो आपके सारे जो चैनल है वो ऑप्टिमल भी रहेंगे और आपके तमाम टास्क हर चीज जगह पे अपलोड भी रहेंगे। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द jinbaba.net। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टास्क। आज के टास्क की बात करते हैं। सलेमान भाई, क्या वो आपका कैमरा क्यों बंद है? सबसे पहला टास्क है हमारा 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑन फेसबुक विद सदेहान अल्लाह वाला। प्लीज उसको मेक श्योर कीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। देन हमारा टास्क 2 है कॉलोनी के साथ बात करनी है। अहमद भाई, 2 टास्क हो गए कॉलोनी के। आज का टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है और जो टीचर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा, मदरहुड के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट मैटर्स। आप ये 2 सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। देन चैटजीपीटी का टॉपिक है हमारे पास 10 मिनट्स का, वो भी 15 मिनट्स के कंसिडर कीजिएगा। अब मैं इसको 10 मिनट से 15 करना भूल गई। उसमें आपने डिस्कस करना है हाउ टू क्रिएट ए डेली रूटीन फॉर सक्सेस, कि अगर हम ऐसी रूटीन बनाए अपनी जो कि हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए और हमारे टाइम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना दे कम टाइम के अंदर। ठीक है। देन हमारे पास टास्क है सॉन्ग क्रिएशन का। प्रोबेबली लास्ट 15 मिनट्स में हमें अब्दुर्रहमान दोबारा ज्वाइन करेंगे आज, और आज कुछ नई टेक्निक्स भी शेयर करेंगे। और अगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेदर कंडीशन वो नहीं ज्वाइन कर सके, देन आई विल शेयर विद यू गाइस। और आज के सॉन्ग क्रिएशन का टाइटल है हमारा विस्पर्स ऑफ सवात एंड स्टोरीज ऑफ हुंजा। ये वाला सॉन्ग क्रिएशन आपने करना है suno.ai की हेल्प लेते हुए और चैटजीपीटी से। एंड देन द टाइम इज द टेड टॉक।
So everyone get ready, pull up your socks. So let's move for today's talk, and that's really amazing. मुझे ये talk बहुत पसंद है, आप सबको भी probably बहुत पसंद आएगी. About today's topic of this TED Talk is Learn How to Learn by Barbara Oakley. और बहुत अच्छे से बाबरा एक्सप्लेन करती हैं कि सबसे ज्यादा ये लर्न हाउ टू लर्न जो है, इसको कॉन्सेप्ट को किस तरह समझेंगे और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स पे भी. मिस मरिया, मेरे लैपटॉप पर बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है. अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट. मैंने व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर दिया है और यहाँ जूम चैट में भी लिंक शेयर कर दिया है. यू गाइस कैन वॉच द वीडियो. आई डोंट नो अबाउट द टाइम, प्रोबेबली 10 से 11 मिनट की थी, ज्यादा लंबी नहीं थी. इट्स अराउंड 18 मिनट्स. ठीक है. आज की टेड टॉक 18 मिनट की है. 10:05 हो रहे हैं. यू गाइस बी बैक एट 10:25 शार्प. आपने 10:25 पे वापस आना है. फिर हम टेड टॉक का सेशन कंडक्ट करेंगे और फिर लास्टली हम आज कुछ नई टेक्निक सीखेंगे अपनी फेसलेस वीडियो के बारे में. So let's watch the TED Talk and then be right back at 10:25 sharp. In the meantime, राहुल भाई 20 मिनट्स का टाइमर प्ले कर दीजिए प्लीज. जी मिस्टर वेरिया, आपका क्या सवाल है? मिस्टर वेरिया, आपका इंटरनेट लैग कर रहा है. मिस्टर वेरिया, आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है मेरी? मैं मैसेज कर रही हूँ मिस. मुझे ये जो चैट जीपीटी टॉक विद चैट जीपीटी, तो ये डिस्कशन होता है, ये क्या है, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. अच्छा, ये जो हम चैट जीपीटी के साथ करते हैं, बेसिकली हम डिस्कशन ही करते हैं. आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, वो भी आप चैट जीपीटी से शेयर कर सकते हैं. डे टू डे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. अच्छा मैं तो ये करती हूँ, तो मेरी रूटीन बताओ कैसे बेहतर हो सकती है. फिर वो आपको फिर से जवाब देती है. फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसको इस तरह से करूंगी, तो फिर बताओ फिर क्या होगा. लाइक इट्स अ 2 वे डिस्कशन प्रोसेस के आप उसके साथ अपना डे टू डे सारी रूटीन भी शेयर करते हैं और उसके कुछ सजेशंस को मॉडिफाई भी करवाने की कोशिश करते हैं. उससे ये होता है कि चैट जीपीटी आपको आपके कस्टमाइज्ड आंसर देता है. जैसे हम आपस में मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिस्कशन थिंग. इट्स द सेम वे ऑन द चैट जीपीटी. लेकिन जो कॉलोनी है वो समटाइम आपके लिए डिस्कशन भी करती है और समटाइम आपको उसको कॉन्वर्सेशन ही कहना पड़ता है कि आप उससे कुछ पूछते हैं और आपको वो सवाल वापस कर आपका जवाब दे देती है. बस वो डिस्कशन पैटर्न को कम फॉलो करती है. मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये बेसिकली ये वीडियो के फॉर्म में हमें पोस्ट भी करनी होगी या क्या करना होगा इसको, जो ये टास्क है? आपने ये दोनों सेशन चैट जीपीटी और कॉलोनी जो है ये लाइव कंडक्ट कर रहे होते हैं मिस्टर वेरिया थ्रू स्ट्रीमयार्ड. मैंने इसका पूरा जो है हमने कल जो है वो एक क्लास की थी कि स्ट्रीमयार्ड को फॉलो करते हुए हम लाइव किस तरह से जाएंगे फेसबुक पे. आप माशाल्लाह से फेसबुक पे अच्छे से आपके फॉलोअर्स है सारी चीजें, तो आप तो फेसबुक पे लाइव जा सकते हो. आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए फेसबुक को लाइव के लिए क्लिक कर रहे हैं और फिर आप फेसबुक पे लाइव करें. ठीक है, ओके. राहुल भाई प्लीज प्ले द पोस्टर एज वेल and watch the TED Talk also. मैम पोस्टर शो हो रहा है टेटॉक का? जी राहुल भाई. अब आप टेड टॉक देख रहे हैं तो हमें आपकी टेड टॉक नजर आ रही है. आपने इंटायर स्क्रीन शेयर की थी ना, इसलिए.
अब मैम दिन क्या करें सॉल्यूशन? मोबाइल पे देखो। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम ये मैं पूछ रहा था कौन से ग्रुप में टास्क आते हैं? राहुल भाई, बैच 11 में आप एडिट नहीं है? नहीं सर मैम, मेरे पास ये नहीं है, ग्रुप मैं नहीं। अभी टेट टॉक का लिंक आपको भेज रही हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे पहले बता देते, मैंने जूम में भी भेजा था। मैम ग्रुप नहीं था, मैं ग्रुप में दूसरे ग्रुप बहुत हैं बट ये नहीं। चलिए, ये कर दिया मैंने ऐड।
हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि वो मुझे नाम असाइन कर दीजिएगा जब आप इजी हो। Assalamu alaikum. What's going in the class? Walaikum assalam. It's a TED Talk session, Miss Gulshan. I shared the link in the WhatsApp group. You can check and join the TED Talk session. इसे तभी Okay. 2 मिनट में ये एंड हो जाएगा। Okay.
Okay, participants, please turn on your cameras. So let's start our review session regarding today's TED Talk. Everyone, please turn on your cameras. Rahul Bhai, Ishal Zara, Laiba, Neerab, Salman Bhai, please turn on your cameras. Okay, guys. So, Rahul Bhai, change the timer now. Okay, Farooq Bhai will share the review at the first. Thank you, Farooq Bhai. Yes, please. Rahul Bhai, timer for 1 minute, everyone. Can you hear me properly? जी, we can hear you properly. ओके। अच्छा देखिए, इसमें मैंने इसको पूरा तो नहीं सुन पाया अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। इसको मैंने मे बी 75% तक इसको मैंने कम्प्लीटली सुना है। जो इसमें मेजर जो इसमें इधर बात की गई थी वो बेसिकली ये है कि आप का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, वो देर आर टू मोड्स, ठीक है ना, जो उसने डिस्कस किया, ठीक है ना। वन ऑफ देम इज फोकस मोड एंड अनदर वन इज डिफ्यूज मोड, ठीक है ना। और इसको इसको उसने समझाने के लिए पिन बॉल का जो है वो एग्जांपल है, ठीक है ना। यानी जब पिन बॉल फायर होती है तो वो बेसिकली जाके हिट होती है जो वहाँ के यानी स्टिल नोट्स निकले होते हैं उससे जाके टकराती है, उसके बाद फिर वो मूव अराउंड होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है जब थॉट प्रोसेस जो है फोकस में आता है, ठीक है, तो उस वक्त जो आपको थॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, देज आर उस डिफ्यूज मोड में लेते हैं, ठीक है, होते हैं। तो उस ऊपर आवाज जो थोड़ा वो फिर आपको कंप्लीट करते हैं, जो आपको इन एक्चुअल किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे ज़्यादातर शायर हजरात होते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी जगह कहीं बैठे हो, वो कहते हैं कि जी मुझे जो है कुछ आमद हो रही है, देर इज समथिंग हैपनिंग, और फिर वो लिखना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्टेड एंड दे प्रोड्यूस मार्वलस वर्क। सो ये मुझे जो इससे अंडरस्टैंडिंग मिली वो ये है कि ये टू मोड्स हैं जिनके दरमियान में आप हो रहे होते हैं, जो थॉट प्रोसेस। Okay, thank you so very much, Farooq Bhai. Yes, Miss Rahat. Miss Rahat. I think उनका इंटरनेट फ्रीज हो गया। जी, मिस लुबना। ओके मैम। एक्चुअली मैंने जब बारबरा ओकले की टेड टॉक सुनी, फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे इससे पहले टेड टॉक सुनने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे सुनना स्टार्ट। तो जहाँ पे उन्होंने दो मोड्स का जिक्र किया, एक फोकस्ड मोड और एक जो दूसरा है डिफ्यूज मोड, तो मेरी तो सारी समझ वहीं पे जाके स्टॉप होगी, क्योंकि मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो डिफ्यूज मोड के ही इर्द गिर्द घूमती है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, फिर उसके बाद फिर मैंने जब प्रोफेशनली भी स्टार्ट किया, मैं फोकस्ड मोड के साथ कभी भी लर्न नहीं कर पाई। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं फोकस मोड के साथ लर्निंग कर सकती थी, चीजों को या समझ सकती थी या उसको एक्सप्लेन कर सकती थी। लेकिन जो मेरा डिफ्यूज मोड था, जब मैं मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता था तो मैं उस चीज को ज्यादा सोच पाती थी, और ऐसा मेरे साथ एग्जाम्स में भी होता था, तो मैं उस तरह का बच्चा थी। तो बेसिकली जो बारबरा ओकले हैं, ये खुद भी इन्होंने जब अपने मतलब ये लर्निंग मोड्स चेंज किए हैं, तो फिर इन्होंने वो अचीव कर लिया जो ये अचीव करना चाहती थी। अदरवाइज स्टार्ट से तो ये एक मतलब प्रोफेसर स्टार्ट से तो नहीं बन गई थी ना। इन्होंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को पहले एक्सपीरियंस किया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंची। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने यहाँ पे लर्निंग मोड का जिक्र किया ना, उसमें हमें एज अ टीचर जब हम बच्चों को लेके चलें तो हम इन मोड्स को लेके चले, जरूरी नहीं कि हर बच्चा फोकस मोड के साथ चले, कुछ डिफ्यूज मोड के साथ भी चलते हैं, तो उनको उसी तरीके से ही चलाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे Thank you so very much, Miss Lubna. Yes, Miss Faida. ओके, थैंक यू। ओके, सो ये जो है पोमोडोरो मेथड,
ये मुझे इसका नाम नहीं पता था, बट सरप्राइजिंगली मैं ये फॉलो करती हूँ। एंड आई थिंक कल हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी कि हम टाइमर लगा के पढ़ें। तो वो मेरे जैसों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जो हूँ वो बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल घूमने फिरने वाले लोग लोग जो नहीं होते वो। तो मुझे तो पकड़ के बैठकर, मुझे अम्मी अब्बू ने मुझे बचपन में तो इतना बिल्कुल भी मेरे पर एफर्ट्स नहीं लगाए क्योंकि मैं आई वॉज वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। बट जब यूनिवर्सिटी में गए तो फिर हमें एक दुनिया देखने को मिली तो फिर हमें घूमना फिरना था। तो फिर उस वक्त मैं जो है ना, उस वक्त से मैंने ये टाइमर मेथड शुरू करा हुआ है। और लिटरली अभी मैंने यूएई आकर, हमारा जो है ना एक टीचर लाइसेंस एग्जाम होता है और वो बहुत टफ होता है। और वो टफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है ना वो कोई ना कोई एक अलग से सब्जेक्ट जरूर लगाते हैं। अब जैसे मैंने केमिस्ट्री का एग्जाम देना है तो वो मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, बल्कि उसमें पता नहीं क्यों उन्होंने फिजिक्स भी ऐड करी। और फिजिक्स में मैं इतनी बुरी हूं कि कुछ हद नहीं। तो मैंने लिटरली 2 आवर्स का मेरा फोकस मोड होता था। सुबह सवेरे मैं 3 o'clock पर उठती थी और 3 o'clock से लेकर 5 o'clock तक मैं बैठ करके पढ़ती थी। और मेरा बकायदा टाइमर होता था और मैंने ऐसे एक्सटेंशंस डाउनलोड करे थे जिससे जो है ना मैं फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब कुछ नहीं खोल सकती थी। तो मैं सबसे पहले बैठते के साथ ही उन एक्सटेंशंस को ऑन करती थी ताकि मेरा हाथ फेसबुक की तरफ ना जाए। तो ओके। तो ये जो है ना ये बहुत इफेक्टिव मेथड है दैट यू स्टडी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फिर आप 5 मिनट्स का रेस्ट लें। और इसमें एक और भी चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, दैट इज रिविजन। ठीक है। और आजकल के जमाने में तो ये रिविजन बहुत ज्यादा इजी है करना, क्योंकि अब जैसे आप पीडीएफ बुक से पढ़ते हैं तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाते हैं। ठीक है। आपके सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स एक जगह जमा हो गए और फिर एग्जाम से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ जो वो स्लाइड्स स्पेसिफिकली आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं एग्जाम के दौरान, आपने वो देख लिए। और योर लाइफ इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच मिस फायदा। यस आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे जो चीज़ लगती है वो मतलब इस पूरे इस टेड टॉक से जो है, जो मैंने सीखा या जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि फोकस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मतलब जो भी काम करें, अब जैसे अभी हम लोग ये क्लास ले रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस हो इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो ब्रेक, मतलब थोड़ी बहुत 5 7 10 मिनट की ब्रेक लें ताकि हम लोग रिफ्रेश हो सकें थोड़ा सा। और फिर उसके बाद जो हम लोग सीख रहे हैं इधर, उसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे जो है वो हम लोग जो है वो अपने आप को ट्रेन करेंगे उस लिहाज से कि जिस लिहाज से हमें काम करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया जी। इशा। In this TED Talk, she is saying that how our brain works and even we focused, और जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो हम लोग चाहे हम लोग जो भी काम करें, लाइक अगर हमारी लाइक नींद पूरी होगी, अगर हम लोग बीच में ब्रेक लेंगे, हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें लर्न करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच इशा। मिस इरम मुश्ताक, आज की टेड टॉक से क्या सीखा, क्या समझ में? यस मैम, मैंने बाकी सब लोगों ने जो बातें करती मैं उनको नहीं इंक्लूड करूंगी, मैं उसके अलावा बात बताऊंगी कि एक तो उसमें ये कि उन्होंने ये टेक्निक बताई है कि अगर आपने कुछ याद करना है तो ऐसे नहीं याद करना। उन पैराग्राफ्स को देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें, उसके बाद इमेजिन करें कि आपने क्या क्या वर्ड्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं, फिर उसके साथ डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद वो ये बता रही हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को याद करना भी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग एक और चीज़ है और उसको रिमेम्बर करना साथ बहुत ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को साथ लेकर चलें। तो फिर उसमें टेक्निक्स बता रही हैं कि भाई कैसे जो है हम, अगर हम आर्ट्स के या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो हम कैसे अपने इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। एग्जांपल दे रही हैं, साइंटिस्ट की भी दे रही हैं और पेंटर की भी दे रही हैं। तो ये मतलब मुख्तसर ये है, फिर इंशाल्लाह आगे फिर बड़ा जबरदस्त, रिव्यू। थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर वेरियर, क्या समझ में आया आज की टेड टॉक में और क्या शेयर करेंगे आप? मैंने जो एक तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं
इसके अलावा उन्होंने जो ये 2 मेथड्स बताए हैं मोड, मिस्टर वेरिया, आपके माइक्रोफोन का वॉल्यूम बहुत लो है। एक अच्छे हेडफोन ले लें जिसका मेटाफर है एक्सटेंडेड माइक्रोफोन हो। कैमरा लेंस करते हैं कि पर इट्स नॉट अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा मैं लाउड बोलूं? आप बहुत बेहतरीन है जी, आप लाउड ही हेलो, तो हम बेहतर सुनेंगे। ओके। तो इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने कुछ शेयर किए हैं और जिसको इन्होंने 2 मेथड्स में एक्सप्लेन किया है, फोकस मोड एंड डिफ्यूज मोड। तो बेसिकली मेटाफर है, कैमरा लेंस यूज करते हैं इसको हम, कि जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उसको एक कैमरे का जो लेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें देखनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक वाइड पिक्चर नजर आती है, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने जो तो वो यही बताया कि एक तो आपके पास टास्क होते हैं बहुत सारे, फिर उसमें स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं बड़े अच्छा इन्होंने जो और जी मिस्टर वेरिया, आपका इंटरनेट बहुत लाइक कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि बात असल में आप क्या कह रहे हो। आपके इंटरनेट की वजह से आपकी लैगिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप वीडियो बंद करके बात कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम सही से समझ पाएंगे आप क्या कह रहे हो। आई होप कि अब क्लियर हो। तो ये जो 2 इन्होंने मॉड्स का इसके एग्जांपल बहुत है, क्लियर है, क्लियर आप है आवाज मेरी बताइए। थोड़ी? ओके। तो यही एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक और कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज और ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर वेरिया फॉर शेयरिंग इट। आसिफ अली भाई, तो क्या समझ में आया आज की टेड टॉक से? आज मुझे यही समझ में आया कि अगर आपको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आपको सीखने का तरीका बदलना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सीखो। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। शफीक भाई, आज की टेड टॉक से क्या सीखा, क्या समझ में आया? आज की जो टेड टॉक है उसमें जो 2 लर्निंग मेथड बताए गए हैं इस पे ही डिस्कशन हुई है, जो फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मेथड। इस हवाले से मुझे बीए के इंग्लिश का एक लेसन याद आ गया जिसमें सल्फाइड और ब्रोमाइड के हवाले से डिस्कशन हुई थी कि बाज़ लोगों पे इल्हाम होता है और बाज़ लोग जो हैं वो फोकस्ड नॉलेज के ज़रिए सीखते हैं। तो अल्टीमेटली जो फोकस्ड वे है उसमें जो डायग्राम की मदद से उन्होंने सिखाया है कि उसमें आप पिन पॉइंट पे टाइम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हम डिफ्यूज्ड वे में किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो मोर देन वन आइडियाज़ आपके माइंड में होते हैं, तो फिर किसी एक पे अमल करना जब वो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो बेसिकली ये 2 आइडियाज़ हैं, ये हर शख्स के लिए, जैसे जिसकी क्रैमिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है वो तो फोकस्ड में अगर ज़्यादा जोर लगाए तो वो ज़्यादा अच्छे से उसके जो है ना हासिल कर सकता है अपने रिजल्ट्स को। लेकिन जिसकी क्रैमिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें अल्टीमेटली उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, उनको मिक्सअप करके उसने लिखना होगा, तो उसके लिए फिर अल्टीमेटली वो दूसरा वे होगा जिसके ज़रिए वो लर्न कर सकता है। तो बेसिकली दोनों आइडियाज़ अपनी अपनी जगह पर मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। ये डिपेंड करता है कि सीखने वाला जो शख्स है वो किस नौइयत का है। जी ओके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच शफीक भाई। नेक्स्ट ऑन माय स्क्रीन मिस लैला, आज की टेड टॉक से क्या समझा, क्या सीखा आपने? जी मैम, डॉक्टर बारबरा ओकली जो कि एक माहिर तालीम इंजीनियर और एक उस्ताद हैं, उन्होंने 2 मेथड बताए हैं और जिसमें डिफ्यूज़ और फोकस्ड मेथड बताए हैं।
और इसमें जो है उन्होंने एक टेक्निक भी बताई है जिस इन 2 मॉड से सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, डिफरेंट फील्ड्स के लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वो किसी और तरीके से नहीं बेहतरी महसूस करे तो वो इसको अपना सकते हैं और इससे अपनी सीख में काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं। तो उन्होंने एक टेक्निक भी बताई है जिसका नाम पोमोडोरो टेक्निक है, और उसमें ये होता है कि 25 मिनट की आप ब्रेक ले लें, 25 मिनट की फोकस कर लें, पढ़ाई कर लें या जो भी आप ऐसा अहम कोई काम कर रहे हैं, और 5 मिनट की ब्रेक ले लें। उससे फिर हम जब इजी होके फ्रेश होके आते हैं वापस, तो हम काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इससे हमें यही उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में और टेक्निक्स के जरिए साइंसी बातों को हमारे अंदर, ताकि एक आम इंसान जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाके नहीं समझ सकता, उसके लिए उन्होंने इजी वे करके बताया है ताकि हम जैसे लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। और मैम मैंने ये भी देखा है, जैसे कि मैम फ़ाइज़ा खालिद साहिबा बता रही थी कि मतलब मैं बहुत खेलने वाला बच्चा हूँ या थी, मतलब पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो मेरी बेटी जो है, एक ही मेरा बच्चा है, 11-10 इयर्स की है, गर्ल है, और मैम उसका ये होता है कि वो चाहती है मुझे बस छोड़ दो, जब सुबह स्कूल का टाइम है, अगर रोने लग जाएगी कि भाई मेरा कोई होमवर्क नहीं हुआ, तो हम ये ऐसे ही करते हैं कि 20 मिनट पढ़ाई और हमारी स्टॉप वॉच ऑन होती है, 10 मिनट ब्रेक, वो इस तरह मेरे हाथ आ जाती है। मतलब उसको होता है सही। बस 20 मिनट तो पढ़ना है, 10 मिनट खेलना है, आधा टाइम मेरा खेल का, आधा पढ़ाई का। बस हम इस टेक्निक से पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये शायद कुछ माइंड पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है, या फिर है माइंड की बात, हमें रेडी करना पड़ता है अपने दिमाग को ना चीजों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच मिस लैला। मिस गुलशान खिजर, योर की टेकअवेज फॉर टुडेज टेड टॉक। जी मिस, मुझे तो यही समझ आया कि अगर आप सीखने का फन सीख लेते हैं ना, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। सही। आपको सीखने का फन आना चाहिए। अगर आपने उसको सीख लिया तो आप फिर कुछ भी सीख सकते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा। आप जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन लेने वाले हैं या इंटरनल मोटिवेशन लेने वाले बंदे हैं। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही अब पता चलेगा कि आप किस मोड में रहने वाले हैं। क्या आप एयरप्लेन मोड वाले हैं, आप डिफ्यूज मोड वाले हैं, या फिर आप फोकस मोड वाले हैं। आप किस मोड के बंदे हैं, उस हिसाब से आपने चलना है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी होगी, भले वो शायर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो एक उस्ताद हो, भले वो एक गायक हो, वो कोई भी हो, वो ज्यादा आपको डिफ्यूज मोड में मिलेगा। वो एग्जैक्टली। हमेशा आपको डिफ्यूज मोड में वो बंदा आपको ज्यादा मिलेगा। और दूसरा, अगर आपने सीखने का फन सीखना है तो फिर उसके लिए आपको अपना कॉग्निटिव डोमेन जो है वो जरा वसी करना पड़ेगा। उसको आप वसी करेंगे, और उसको वसी करेंगे आप खुद, अपनी गलतियों से सीख के, अपनी अपनी दोहराई करके, अपने आप को कुछ आराम दे के, कुछ वक्फा डाल के, फिर आप उन चीजों को सीखेंगे। ये डिफ्यूज मोड वाला जो ना, इसमें तो मेरा टाइमर लग गया है। मतलब ये तो मेरी जैसी खातून के लिए बड़ा मुश्किल है कि आपने टाइमर लगा दिया, बस ठीक है फिर। एक्चुअली आई हैव अनदर टास्क, मैं आज आपको कुछ और टेक्निक भी बतानी है हमारी फेसलेस वीडियो के रिगार्डिंग। सो इट्स इम्पोर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन में हमारा काफी टाइम चला, इसलिए। सही सही। ये ना मुझे थैंक यू सो मच। ये इसको ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे मैं वैसे अभी तक वेट कर रही हूँ, अभी तक एक बात शेयर नहीं हो सकी, बाकी पूरी टेड टॉक हमने रिवाइज कर ली। लेट्स सी बाकी पार्टिसिपेंट्स उस बात को शेयर करते तो बहुत अच्छा होता। मैं लाइबा, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मुझे तो यही समझ आया कि ये लाइक उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, जल्दी भूल जाते हैं सारा कुछ। तो उनके लिए तो बेस्ट है रिवीजन करना, बार बार टेस्ट जो आप लोगों ने किया उस अपने आप से वो टेस्ट लेना, रिवीजन करना अपने माइंड में कि उन वर्ड्स को बार बार नोट करना कि हाँ ये वर्ड्स हैं, और फिर उनको बार बार टेस्ट अपने ही आप से फिर टेस्ट लेना। लाइक उनके लिए ये बेस्ट है जो दूर भागते हैं। मैं खुद भी इसी तरह से दूर भागती रहती हूँ। अब मेरा ये होता था, मम्मा मुझे कहती थी कि पढ़ लो, मैंने कहा मम्मा अभी थोड़ी देर मैं पढ़ तो रही हूँ, अभी इतनी देर से तो पढ़ रही थी, थोड़ा सा पढ़ते ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़ लिया है। अब जाके जो है आधा घंटा पढ़ लेते हैं, और फिर मम्मा फिर बोलती है बस ठीक है 15 मिनट की ब्रेक लो और वापसी जाके पढ़ो। सेम मिस फायजा, जैसे उन्होंने बताया कि वो भी टाइमर लगा देती थी। मेरी मम्मा ने टाइमर लगा दिया था मेरे ऐप्स के ऊपर कि बस अब जाना नहीं है टाइम के ऊपर, अगर गई ना तो फिर मैंने लॉक लगा देना। इस डर से वे जो है अपना पढ़ना शुरू हो जाते थे वापसी।
जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच लाइबा। अहमद मुस्तफा भाई। बेसिकली तो लर्निंग मोड्स पे बताया इन्होंने कि कुछ लोग होते हैं कि उनको क्वाइट रूम मिला होता है, इवन चेयर टेबल भी होती है, मगर फिर भी उनका फोकस नहीं होता उसके ऊपर। और लाइक जो हमारा एक्सपीरियंस हम भी करते हैं कि पेपर्स में हम लोग बुक ले लेते हैं और स्क्रीन पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो उससे ये होता है कि एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और वो स्ट्रेस भी पता नहीं चलता पेपर का, और याद भी जल्दी हो जाता है। और यही क्या है कि उसको बार बार याद करें, उसको टाइमली रिपीट किया करें, और मेन कंक्लूजन यही है कि डोंट अफ्रेड फ्रॉम फेलिंग, जस्ट इम्प्रूव योर लर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई। वी हैव मिस नेक्स्ट मरियम, पार्टिसिपेंट। जी मिस लाइबा। मैं इस पे बोलना चाहूंगी। अब हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ रहे होते हैं। अब जब ज्यादा पढ़ते रहते हैं उसी चीज को, वो जितना जितना हमें याद हो रहा था उतना उतना पीछे से भूलते जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हमारा फोकस नहीं है। फोकस होना जरूरी है। वो फोकस कैसे बनता है वो एक अलग डिबेट है, और वो कैसे बनाया जाता है वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर reinforcement हमारा। is the key. सॉरी। Reinforcement is the key here. Reinforcement is the key here. कि आप अपने आपको जो लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप बार बार जो है वो स्क्रीनशॉट्स देखें। मैं जब ट्यूशंस पढ़ाती हूँ बायो और केमिस्ट्री की, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ कहती रहती हूँ ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट लो। और मेरे स्टूडेंट्स का डे वन से जो है ना मोबाइल फोन्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अलग अलग फोल्डर्स बने हुए होते हैं। तो स्क्रीनशॉट इज द की इन दिस एरा। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस निशान। मैं ना ये इस वीडियो के अकॉर्डिंग ना सिर्फ एक एग्जांपल कोड करना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरी अपनी जाती जिंदगी की है। मैं जी जी ये प्लीज। डिफ्यूज मोड के सिलसिले में कि ये तो बहुत ही ना एप्लीकेबल मोड है इंसानी जिंदगी में। अगर अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ है। मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, मैं डेली बेसिस पे आती होती थी जाती थी, मेरी अम्मी बीमार थी, मैं हॉस्टलाइज नहीं थी। तो ऐसे ही ना सफर के दौरान हमारे यूनिवर्सिटी में उन दिनों एक कंपटीशन चल रहा था, ये ड्रामेटिक सिलसिले में। तो हर डिपार्टमेंट ने अपना एक एक जो है ना उन्होंने पेश करना था। अच्छा, मेरे जहन में आया कि ना ऐसे ही सफर के दौरान मेरे जहन में आया कि हम भी क्यों ना माइम करें। तो उससे पहले हमारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की ना ये एक शान थी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कि इन जैसा माइम कोई नहीं करता। तो हमने अपने सीनियर्स को देखा था कि उन्होंने इस तरह से, उनका बड़ा मशहूर था, और हम सेकंड बैच थे अपनी यूनिवर्सिटी में, उससे पहले सिर्फ एक फर्स्ट बैच गुजरा था। अच्छा, वहां मैं घर आई हूँ, घर आके शाम को बैठ के तो मैंने ना वो माइम ये 14 अगस्त के हवाले से लिखना था, वो मैंने ना माइम लिखा जिसका नाम रखा रोज आती है किसी के सिसकने की सदा। तो अगले दिन मैं लेके गई हूँ, और हम इतने कॉन्फिडेंट इतने बोलते, हमारी बड़ी बेइज्जती भी हुई थी अपनी फिर डीन से, कि हम वहां बैठे हैं, क्लास में डिसाइड किया है, वहां बैठ के वहीं पे हमने अपने एक्टर जो है वो चुने हैं, वहीं हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। और जब हमने सारा, और हम जाके लिखवा, हम इतने कॉन्फिडेंट थे, हम जाके लिखवा भी आए अपना नाम, किसी से अप्रूवल नहीं लिया। हमें मतलब ये हमारे जेहन में नहीं आएगा, अप्रूवल जो है वो तो मस्ट है, उसको उसको लिए बगैर तो जा ही नहीं सकते आप। हम गए हैं वहां जाके अप्रूवल करवाए हैं, और हाँ उनको पास जाके नाम लिखवाया, जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये माइम करना है। उन्होंने जब हमारे डीन को कॉल की ना, तो उन्होंने हमें बुला लिया, बुला के ना वो कहती आप लोग वहां जाके नाम लिखवा गए हैं। तो हमने कहा जी, लो भाई, हमारी कोई कोई बेइज्जती हुई? उन्होंने कहा ये तो हमारी शान थी इस तरह से, और तुम लोग लिखवाए और नाम डुबो देना तुम लोगों ने हमारा, ये फला। सुनते रहे, कहते जाओ फौरन जाओ जाके नाम कटवा के आओ। हम चले गए, भागते गए, उनसे जाके कहा कि जी नाम काट दें। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो पेनल्टी पड़ जाएगी आपके डिपार्टमेंट को, अब हम नहीं काट सकते, हम तो जाएंगे चांसलर के पास कि इस डिपार्टमेंट ने ऐसे किया है। हम फिर वापस आए, फिर आके डबल बेइज्जती हुई। फिर उन्होंने, मेरी जो सीनियर थी उनको साथ लगाया कि इनको ना कुछ टिप्स बताओ। वो टिप्स उन्होंने बताई हैं, हमने उन टिप्स को फॉलो किया है, और यकीन माने वहां जितने भी कंपटीशन में डिपार्टमेंट्स आए हुए थे ना, हम वहां से फर्स्ट प्राइज लेके निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना अच्छा हो गया था। तो अगर आपने कुछ सीखना कुछ करना, तो डिफ्यूज मोड जो है ना, वो ना कहीं आपको पता भी नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद ही एक्टिव हो जाता है। जबरदस्त। Thank you so very much, Ms. Gulshan, for sharing such a beautiful memory. We have मीरब। मीरब और सलमान भाई। आज आप दोनों का रिव्यू नहीं हुआ, सो प्लीज कौन पहले माइक खोलेगा? जी सलमान भाई।
सलमान भाई लुकिंग लाइक फ्रीजिंग। अच्छा जी, नीरव योर टर्न प्लीज। क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मैम मैंने एक बार और सुनना है, तो मैं कल दे सकती हूँ रिव्यू? एक्चुअली कल तो फिर हमारे नेक्स्ट टास्क होंगे ना मेरा। आपको जो समझ में आया बता सकते हो, प्रिटी ओके, क्योंकि हमें यही तो सीखना है ना एक दूसरे से, ताकि हम ये सुने कि मेरब ने क्या सीखा आज के टेड टॉक से। अ, अगर जी जी आप मेरब। किसी भी अगर आपको किसी भी काम में फ़ोकस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपके माइंड को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड पे प्रेशर बन रहा है, जैसे स्टडी का प्रेशर बन रहा है, तो आप थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप उस काम पे फ़ोकस कर सको और आपके लिए वो काम आसान हो जाए। जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो काम आपके लिए आसान हो जाए। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच मीरा फॉर शेयरिंग योर इनटेक। जी सलमान भाई योर टर्न प्लीज। सलमान भाई। जी सलमान भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? नसीमुल्लाह भाई अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। सलमान भाई अनम्यूट योर माइक। जी मैम आपकी आवाज नहीं। आप टेड टॉक का रिव्यू दे दीजिए, मेरी आवाज भी खैर है, आपकी आवाज आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे आप कह रहे हैं किसी और को? नहीं सलमान भाई को। सलमान भाई प्लीज, आप बेहतरीन ये होगा कि कल से इसको कुछ अप्रोप्रिएट कर ले, ताकि हम आपको भी सुन सके, ठीक है? नसीबुल्लाह भाई आज की टेड टॉक से क्या सीखा आपने, क्या की टेक अवे शेयर करेंगे? मैं ना साथ बना रहा था अटेंडेंस फॉर्म। आपके अच्छा मैंने जी। एक अटेंडेंस फॉर्म बनाया है। इनके हर एक का नाम लिखा हुआ, ये इसको क्लिक करेंगे, उसका डेट टाइम इनका सेट हो जाएगा, इनकी अटेंडेंस वहाँ सेव हो जाएगी हमारे गूगल फॉर्म पे। तो वो मैंने जो सुना है, मैंने उसको देखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। आज मेरा ये काम अच्छा अच्छा। कंप्लीट था, उसे मैं साथ चेक कर लिया करूँ। चलें जी, ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी। मिस गुलशान, अब्दुर्रहमान बी रेडी। मिस गुलशान। मिस मुझे छुट्टी चाहिए थी। आपको छुट्टी चाहिए थी, कब अब की? आज ही अभी? अब की। जी जी प्लीज प्लीज, आप लीव कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू। थैंक अटेंडेंस यू सो वेरी। कर जाइएगा लीव करने से करके ना, ये आपके पास है, इसको कॉपी कर ले, इसको प्लीज फिल कर दीजिएगा। नसीबुल्लाह भाई ये मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं ग्रुप में पेश कर देती हूँ। आप अभी कर। ठीक है, वहां से हो जाएगा। ओके। लास्टली एक बात यहाँ पे शेयर करूंगी आज की टेड टॉक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने ये बताया कि इस टेड टॉक में दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर द स्लो लर्नर्स, जिनको हम कंसीडर करते हैं ये तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, और वो पार्टिसिपेंट्स सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी चीज में फोकस करने में, वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और वो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी आपको प्रेजेंट करते हैं, और इतने अच्छे आइडियाज, और इतनी अच्छी आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मतलब कॉमेडी में अच्छा हो सकता है वो बच्चा आपके डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में वो अच्छा हो सकता है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि करिकुलम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत अच्छा हो सकता है। तो जितनी भी क्रिएटिविटी है वो तभी हमारी ज्यादा से ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है, जब हम इन सब चीजों में कम से कम लीस्ट बॉदर्ड हो जाए, तो हम दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एनी हाउ, हम चलते हैं अब अब्दुर्रहमान की तरफ, ताकि आज हम कुछ और टेक्निक सीख लें अपनी फेसेस वीडियो के रिगार्डिंग, और हम उसको बेहतर कर सकें। जी अब्दुर्रहमान, शेयर योर स्क्रीन एंड ओवर टू यू। ओके। स्क्रीन शेयर है।
जी शेयर्ड आपकी स्क्रीन। वही लास्ट टास्क पे ही कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आसानी रहे पार्टिसिपेंट को समझने में भी। अब फिर अभी जी टाइम नहीं है कि नया आप बना सको project। हम्म ये रही मेरा ख्याल है ये। हम्म ठीक हो गया। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ देखी थी। अब जो है मैं इसी में एक न्यू फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब आपकी कोई बीट चल रही होती है तो आप लाइक कोई भी तस्वीर या कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको वापस सुनवा देता हूँ। साउंड। ठीक है, इस तरह से मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसी बीट के ऊपर एक फ्रेम में अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका ये है कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज आप पाकिस्तान पे कुछ भी बना रहे हैं ना, इधर आप सिंपल लिखेंगे जिस टॉपिक पे भी आप सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। ये लिखा। अब आप चाहें तो वीडियोस बहुत सारी लगा सकते हैं। वीडियोस हो गई, अभी फोटोज पे देख लेते हैं। ये फोटोज पे आए, एक सेकेंड। लेट सपोज एक ये उठा लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये बड़ा साइज है पिक्चर में, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास चार होते हैं सर्कल, चारों सर्कल से हम इसको छोटा कर सकते हैं। अगर हमें लंबाई में लेके जाना है इसको, विड्थ जो है इसकी बढ़ानी है तो इस तरह से विड्थ बढ़ जाएगी। और हाइट अगर बढ़ानी है और कम करनी है तो इस तरीके से हाइट बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इस तरह से इसको छोटा करके इसको ये देखें। अच्छा, हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये हाफ है? ये देख रहे हैं आप सबको, एक रेड कलर की लाइन शो हो रही है जिससे वो बता रहा है ये पार्टीशन है। अब इससे नीचे ये हाफ हो गया है, अब इसके नीचे अगला हाफ है, ठीक है। तो आपको ये भी कैनवा बता देता है। यहाँ आप रोक दें, ठीक है। इस अब इतने ही साइज में बाकी तस्वीरें भी लगेंगी। अब दूसरी मैं उठा लेता हूँ, ये वाली। ये भी बड़ी तस्वीर है, इसको भी मैं छोटा करता हूँ। अच्छा, अगर आपको हिसाब का पता ना चले तो आप फिर इसी तस्वीर पे रख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं इक्वली, ठीक है। अब जो ये छोटी तो हो गई, अब इसको मुझे नीचे से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो मैं इधर से इसको बढ़ा रहा हूँ। अब ये इक्वल हो गए दोनों फ्रेम्स। इसको अब मैं इधर इस तरह से, आपने बहुत सारी पिक्चर्स अगर ऐड करनी है तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेट सपोज मैं कोई एक ये वाली उठा लेता हूँ। अब देखिए ये थोड़ी सी जो है ना आ, तस्वीर बड़ी है, तो इसको हम अगर छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें, वरना इक्वल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये अब हमारे ऊपर है, ठीक है। और इसी तरह से कोई और तस्वीर, ये आ गई मीनार पाकिस्तान की। अब इसको नीचे रख के इस तरह से भी इक्वल किया जा सकता है। इसको ऊपर वाली स्पेस में एडजस्ट कर लेते हो, सही हो जाता है। ओके। नहीं यहाँ पे नहीं, वो जो यहाँ पे ये जो मॉस्क ऐड किया है ना उसकी जगह पे, वहां पे स्पेस कम थी ना, ये सही हम्म रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे इसको। ये हो गया। अब इसी तरह से ये नीचे वाला आप हिस्सा फुल करेंगे। ठीक हो गया। ये एक और मॉस्क आ गई। अगर आप इक्वालिटी के साथ साथ करेंगे ना तो खूबसूरत लगेगी चीज़ें। अगर आप ऐसी साइज अपनी मर्जी से रख देंगे
तो फिर लुक जो है ख़राब हो जाती है। इसी तरह से ये मॉस्क आ गई। ये देखें, अब इसकी लुक देखें, सारे फ्रेम इक्वल हैं, बराबर है। ठीक हो गया। एक ये तरीका है। अब आप इस वाले फ्रेम को, अगर मैं आपको यहाँ बीट पे लगा के दिखाऊं, ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तस्वीरें हैं इसी से रिलेटेड है कि अभी ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, खाली फोटोज़। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेशन हम कहाँ से लगाते हैं वो भी मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, जिस किसी पे भी आपने एनिमेशन लगानी है ना, तो उस पिक्चर को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने इस पे लगानी है, पहली पिक्चर पे, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड पे टॉप पे हमारे पास एनिमेट का ऑप्शन होता है। सही है, इस पे क्लिक किया। अब देखिए इधर कितनी सारी एनिमेशंस हैं। अब आपकी मर्जी है जोन सी आपने एनिमेशन लगानी है लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लेट्स सपोज मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आप एनिमेशन लगाते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं, किसी किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते। अब ये ऑप्शंस किस चीज़ के हैं? पहला ऑप्शन है, लाइक आपकी ये जो तस्वीर है ना, ये बोथ का मतलब दोनों दफ़ा एनिमेट होगी। जब फ्रेम स्टार्ट होगा तब भी एनिमेट होगी, और जब ख़त्म होगा ये तब भी एनिमेट होगी। अभी मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ किस तरह से। अब आपने खाली ये जो पाकिस्तान वाली तस्वीर है इस पे फोकस करना है, टॉप पे। ये देखें अभी एनिमेट हो गई। अब जैसे ही फ्रेम ख़त्म होगा तो देखिएगा ये अभी भी एनिमेट हो गई। ठीक है, बोथ। अब इसी तरीके से अगर आप खाली ऑन एंटर, खाली जब आपका फ्रेम स्टार्ट हो तब करवाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन एंटर पे कर देंगे। इधर से अगर एग्जिस्ट पे करवाना चाहते हैं तो एग्जिस्ट पे कर देंगे, और यहाँ से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड बिल्कुल मैंने कम कर दी, तो ये आपके ऊपर है जितनी आप स्पीड रखना चाहें। उसके अलावा डायरेक्शन है। अभी ये जो आपकी एनिमेशन है ये राइट साइड से आ रही है। अगर आपको उसको लेफ्ट साइड से लाना है तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो अब ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, वैसे तो हम राइट साइड पे रखते हैं। एक ये चीज़ है जो आप इसी तरीके से आप सब पे एनिमेशन लगा लेंगे तो अब ये आपको थोड़ी सी अच्छी लुक देगी। मैं एनिमेशन लगा के दिखा देता हूँ सारों पे। ठीक हो गया। अब मैं वीडियो चलाता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी वीडियो लाइक लुक दे रही है तस्वीरें। सही है, आज हमने दो चीज़ें देखी। पहली, एक फ्रेम में कितनी हम तस्वीरें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और दूसरी, इन्हीं तस्वीरों को थोड़ा वीडियो शेप में किस तरह से कर सकते हैं। एनिमेशंस है, वो एनिमेशंस आप जोन सी मर्जी आपको पसंद है लगा सकते हैं। ओके अब्दुलरहमान, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? किसी के यहाँ तक कोई सवाल है इन दो चीजों के बारे में जो आज हमने सीखी है अपनी फेसलेस वीडियो के बारे में? और प्लीज आज हमारी जो फेसलेस वीडियो है जिस सवाल और हुंजा के बारे में, उसमें इन दो टेक्निक को जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप हैंड्स और प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को ला सके। और हम कोशिश करेंगे कि जब हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये सारी टेक्निक्स पूरी हो जाए तो फिर आखिर में जितनी भी वीडियो दूंगी उसमें ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट जरूर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। So any question from any participants? No? That's great. Abdurrahman, बहुत अच्छे टीचर हो आप। Thank you so very much. Okay, मैम क्या participants, हम thank you इन so पिक्चर्स की very much. जगह जी जी ईशान। मैम क्या हम इन पिक्चर्स की जगह वीडियोस लाइक एडजस्ट कर सकते हैं? वीडियो थोड़ा सा ट्रिकी जरूरी है, थोड़ी ना ठीक है। पिक्चर्स। अभी आज पिक्चर्स वाला प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम अगले वाले सॉन्ग में वीडियोस वाला काम भी सीखेंगे। ठीक है, हम कर सकते हैं बिल्कुल एक ही फ्रेम में 4 वीडियोस, 8 वीडियोस, 12 वीडियोस भी आप सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपको जो है वो थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स ऐड करनी पड़ेंगी।
पिक्चर्स का थोड़ा इजी था, इसलिए अब्दुर्रहमान ने सबसे पहले पिक्चर्स के फ्रेम बनाना सिखाया ताकि आप एक ही फ्रेम पे डिफरेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जब अपनी वीडियो को जब वो बीट यानी वो म्यूजिक जब आपका आता है ना, तो उसको किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट स्टाइल में उस म्यूजिक को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो हम टाइम टू टाइम ये सारी चीजें अब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिगार्डिंग एनी टास्क? कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी मिस लाला। मैम, ऐसा मुमकिन है कि अगर आप हमारी गूगल शीट वो जो लॉक्ड ग्रुप है उसमें सेंड कर दें, और हम फर्दन जिसको अगर कोई इशू हो जाता है दोबारा, तो वो आपको तंग किए बगैर वहां से अपनी उसमें ईमेल डाल ले और फिर अपने हिसाब से उसको यूज कर ले। नहीं, आप अपनी ईमेल ऐड नहीं करेंगे, वरना 1500 ईमेल ऐड हो जाएंगी। तो जो ईमेल अच्छा, शेयर की गई है उसी ईमेल के साथ करेंगे, क्योंकि ऐसा ओके। इसलिए है आपका एक ही ईमेल के साथ उसको चेक करेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये मिस लाला ही फिल करी है, कोई एनोनिमस पर्सन उनकी शीट में को आके खराब ना कर सके। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ये पिन हो जाएगी, और आप जब चाहें अपनी शीट को डायरेक्टली अपने ग्रुप से जाके ओपन कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। Okay, participants, thank you so very much for today. We have a very wonderful class, and thank you so very much for participating in each and every activity. We'll see you tomorrow at the same time, 9 p.m. UTC +5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much. Take good care of yourself. Good night. Sleep tight. Allah Hafiz.